not much of, you know, friction in your mind when it comes to economics. Like I told kids the last time, okay, what I want is कि scoring 70 plus in economics should not be a task for you. Should be like कि मेरे को eco का 70 आ रहा है, अभी बाकी का जो मेरे को लाने का है 300 plus या जो भी चाहिए मेरे को, how do I get it? You guys know ना 300 plus is a distinction. 400 में से 300 के ऊपर आया तो it's a distinction, right? So these are going to be our chapters. To my new kids who have joined today, आपके लिए एक short revision कर रहा हूँ. These are our chapters बेटा. Last time हमने इसका weightages दिया था सबको. Please take that from your friend. I am not putting my time into that right now. आप broadly देख सकते हो बच्चा over here that we have these chapters for micro and we have these chapters purely for macro. Business cycle है, it helps us understand macro concepts, how the macro economy moves and everything. जो first chapter है वो हमारा introduction है, मतलब it introduces us to the whole thing that we are going to do. कि business economics क्या होता है and everything. To put simply, business economics क्या होता है? Economics works on two principles, scarcity and choice. Do we all agree? Yes, scarcity and choice. Scarcity क्यों? Human wants unlimited है, resources limited है. एंड चॉइस क्यों? क्योंकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है. मतलब आई कैन यूज द सेम 100 रुपीज टू परचेज अ बुक, टू बाय अ डीवीडी, टू बाय अ पेन ड्राइव, टू हैव माई फूड, टू बाय अ क्लॉथ, मेनी मेनी थिंग्स. तो आई हैव टू मेक अ चॉइस कि भाई ये 100 रुपए का मुझे क्या करना है. डू वी ऑल अग्री? यस. जब बेटा हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बिजनेस फेसेस द सेम थिंग. लाइक अभी पीए है. डज पीए हैव अनलिमिटेड कैपिटल? कैन पीए बी लाइक हाँ हर जगह ब्रांच खोल लो फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं? नो, वी हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे करना है, whether we'll get the number of students, whether this is a relevant course, this and that, everything. So business is also using and dealing with scarcity and has to make a choice. तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि भाई I have the expertise in dealing with scarcity and making a good choice. I have a lot of tools that will help you make better choices. So let me explain it to you and we'll make a whole new subject that is business economics. मतलब economics के वो concepts, वो application जो business and business managers use करते हैं in order to grow the business, in order to make the business very efficient. Efficient मतलब minimum cost, maximum profit. Is this clear बेटा? Yes. तो इसमें अभी हम लोग जो कर रहे हैं that is theory of demand and supply. अभी थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में वी आर डूइंग द कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट. अभी एक बात बताओ, इफ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस, वुडंट यू वांट टू नो कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनका कंज्यूमर बिहेवियर मतलब स्पेंडिंग बिहेवियर या डिमांड बिहेवियर कैसा है? यू वुड वांट टू नो, राइट? सो दिस चैप्टर टीचेस अस दैट पार्ट कि भाई यश, तेरे जो कस्टमर्स है, तेरे जो कंज्यूमर्स है, हाउ आर दे थिंकिंग, हाउ आर दे डिसाइडिंग, on what basis are they deciding and how is their thought process or their psychology going on. तो ये हमको इस चैप्टर में सिखाते हैं. Is that clear? Yes. अच्छा, apart from that हमें ये भी समझ में आता है कि हम बाइंग डिसीजंस कैसे लेते हैं. So for example, मैंने बच्चों को लास्ट टाइम बोला था कि डिमांड जो है that is desire plus ability to play plus willingness to pay. Do we all agree? Yes. But वो desire जो आता है वो कहाँ से आता है? That is what the first part we should be studying, right? कि वो जो desire है, for example, I am like कि भाई मेरे को जो मेरा phone है that is Motorola, okay? So how did I desire a Motorola phone? I had a want, मुझे mobile phone चाहिए. But how did I come to the conclusion कि मेरे को Motorola का phone चाहिए? Why did I demand a Motorola phone? That is the crux I have to understand. तो उसमें हमको help करता है utility. Utility जो है बेटा वो एक mental filter है. अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ओके, आई हैव ओनली 100 रुपीज, मॉम डैड आज बाहर गए, मॉम डैड ने बोला कि बेटा आज तू खा लेना. विल आई ट्राई टू स्पेंड द 100 रुपीज ऑन द थिंग्स आई नो आई रियली लव और ऑन द थिंग्स आई डोंट नो इफ आई लाइक और नॉट? आई रियली लव. यस. तो एक मेंटल फिल्टर आ रहा है ना दिमाग में कि मेरा ये रिसोर्स है और मेरे पास ये सारी चीजें हैं. व्हाट विल गिव मी द हाईएस्ट वैल्यू or the highest utility for this 100 rupees, I will choose that. तो एक mental process चल रहा है ना before we make the decision, right? For example, जब मैंने फोन लिया था, ठीक है, तो I did not want to spend much on the phone because I keep on traveling,
ठीक है, और मेरा फोन पटकता रहता है, अभी भी बेचारे की हालत देखो तो ऐसे मरने पे आया है, ठीक है. सो आई वाज लाइक एक्सपेंसिव फोन तो ना हो पाई. ओके, नाउ दिस फोन इज वाटर प्रूफ. ठीक है, सिंस आई ट्रैवल अ लॉट आई हैव टू ट्रैवल विद द ट्रैवल पाउच. मुंबई की बारिश, ठीक है, दिस फोन इज वाटर प्रूफ. तो मेरा वो टेंशन गया, वो पाउच लेके नहीं घूमने का, कुछ भी बटन दबा रहा है, किसी को भी कॉल लग रहा है, वो सब नहीं होगा. प्लस दिस हैज अ वेरी गुड कैमरा एंड इट हैज अ वेरी गुड बैटरी लाइफ. एज अ 30-year ओल्डी मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा बैटरी लाइफ और व्हाट्सएप, हो गया. सो माई यूटिलिटी वॉज कि मैं जो 25,000 रुपीज स्पेंड करना चाहता हूं मेरे मोबाइल पे, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोबाइल फॉर माई 25,000 रुपीज. तो ये जो प्रोसेस था ना, वेयर आई वेंट फ्रॉम मुझे मोबाइल चाहिए टू मुझे मोटरोला का फोन चाहिए. हाउ डिड आई कम टू दैट डिसीजन? सिंपली बाय गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ यूटिलिटी. ठीक है बेटा? सो दैट इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट फर्स्ट. इज दिस क्लियर? यस, ओके. We'll obviously discuss this in a lot more detail, but you can see the recorded video. Okay? चलो. So बेटा, all of you have the books. जिसके पास अभी तक नहीं आया है, please follow the PPT over here. ठीक है? Chapter 2, Unit 2, Theory of Consumer Behavior. Everybody with me? Yes बेटा? Okay. Now, सबसे पहले ना तो वो हमको समझा रहे कि wants क्या होती है. ठीक है? Why is it important? Because wants के बेसिस पे हम डिजायर कर रहे हैं, डिजायर के बेसिस पे हम डिमांड कर रहे हैं. तो व्हाट इज द लॉजिकल स्टेप? सबसे पहले wants को समझना चाहिए ना. wants कितने तरह की होती है, क्या तरह की होती है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को स्नेहा ने पूछा कि सर व्हाट इज सुपरफ्लुअस और व्हाट इज अ लग्जरी गुड, क्या हम लोग उसको वैनिटी के लिए क्यों लेते हैं, राइट? सो टुमारो इफ आई एम स्टार्टिंग अ स्पोर्ट्स कार का ब्रांड और अ ब्रांड लाइक रोल्स रॉयस, so I'll have to understand now why people will spend 13 to 14 crore rupees to buy a car. लॉजिक में बैठता नहीं है. 14 करोड़ रुपए की गाड़ी, तुम बोलोगे भाई पागल है तू. Yes or no? Yes, but people buy or they don't, they do. तो अभी when I'm making a Rolls Royce, I have to understand कि कंज्यूमर का वांट क्या है. कंज्यूमर इज नॉट लाइक मेरे को गाड़ी चाहिए ट्रैवलिंग करने के लिए. Consumer is like मुझे Rolls Royce चाहिए. It should make the statement. It should be like भाई इसके पास Rolls Royce है. Do we agree? Yes. If you take a Ferrari, will you take it for comfort and drive or family time? No. You will take it to show everybody in your life कि देख मेरे पास Ferrari है, तेरे पास नहीं है. So that is vanity. That is that thing I am doing ताकि मुझे एक वो satisfaction मिले. That satisfaction मेरी human want है कि everybody should know how successful, how amazing I am doing in my life. And this car is a way of showing that. I cannot go to everybody and say, "ए तेरे को पता है मैं कितना successful है?" तू सोच भी नहीं सकती. ऐसा जाके मैं सबको नहीं बोल सकता ना. But if I tell her कि हाँ sorry यार मेरे Rolls Royce का ऑयल चेंज करवाने का था, आज बहुत टाइम लग गया. क्या बात कर रहे हो Rolls Royce? क्या बात कर रहे हो Rolls Royce? ठीक है? Rolls Royce का जो ऑयल चेंजिंग है ना, that is equal to a कार का प्राइस. सिर्फ इंजन का जो ऑयल चेंजिंग का खर्चा है ना, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल कार का प्राइस. तो एज अ बिजनेस ओनर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन वांट्स कैसे वर्क करती है और ह्यूमन वांट्स कैसे मांगी जाती है. डू वी अग्री? यस. सो इट इज टेलिंग अस कि भाई ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है, अनलिमिटेड है. यूटिलिटी इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है. ईच वांट इज सेशिएबल. सेशिएबल मतलब इनको फुलफिल किया जा सकता है. ठीक है? यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. हमने एग्जांपल लिया था कि भाई मैं हूं और दिव्य है. दिव्य इज माय यंगर ब्रदर. संडे है, वो मैच खेलने गया नीचे सबके साथ. 3-4 घंटे से वो मैच ही खेल रहे हैं. मैं घर में मस्त एसी लगा के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ. मैं मेरी उम्र का काम कर रहा हूँ, वो अपनी उम्र का काम कर रहा है. बराबर. नाउ व्हेन ही कम्स होम, वो फ्रिज से बॉटल निकालता है और अंदर मेरे रूम में आके बैठ जाता है कि हाँ एसी इतना अच्छा लग रहा है. तो जब वो पानी का बॉटल लाते हैं, मैं उसको बोलता है मेरे को भी देना, मैंने भी 3-4 घंटे से पानी नहीं पिया, मेरे को कंटाल आ रहा था किचन तक जाने का. Now I drink from the same bottle and he drinks from the same bottle. Who will have more utility for that water? Divya. Why? Exactly. He is dehydrated. थका हुआ है, नीचे धूप में खेल के आया है. Yes or no? Yes. So do we understand this? Utility depends on intensity of want. Okay? चल. Then wants are complementary. कई बार हम लोग साथ में चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे पेन एंड इंक, गाड़ी एंड पेट्रोल एंड ऑल सच थिंग्स. ठीक है? सम वांट्स रिकर, मतलब फूड है, सुबह खाया था, दोपहर को खाएंगे, रात को भी ठूस के ही सोएंगे. राइट बेटा? देन इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब हमारी साइकी पे डिपेंड करता है.
ठीक है. हाउ थिंग्स आर इन आर हेड विल डिपेंड ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेजिटेरियन, ठीक है. तुम दुनिया की बेस्ट चिकन बिरयानी लाके रखो, इट विल नॉट गिव मी एनी यूटिलिटी, मैं खा ही नहीं सकता. यू गेट माई पॉइंट? यस. सपोज योर फेवरेट फूड इज चाइनीज, okay, and I give you some Mumbai ka food, you might not like it, it will not give you utility. But if vada pav is my favorite, so it will give me the highest utility. Do we agree? Yes beta. Okay, दो important concepts, TU and MU. What is TU and MU? So total utility is the summation of all marginal utilities. Now beta एक चीज याद रखना, जब भी वर्ड मार्जिनल आता है ना इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब होता है +1 या 1 more. Okay, so marginal utility means the utility I get from consuming one more of the commodity, from consuming one more unit of whatever I am consuming. Okay, utility is the want satisfying power of a commodity. Marginal utility मतलब जो want मेरी satisfy हुई एक और consumption से. Do we agree on this? Yes. ये 12th में किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना बेटा, नसीब. ठीक है. Now आप देखोगे तो MU के हमको दो फॉर्मूलेस दिए हुए हैं. डू वी सी दैट बेटा? यस, 2 फॉर्मूलाज गिवन टू अस. आपको क्लियरली दिख रहा है ना टेक्स्ट कि ब्लर है? क्लियर है ना? पक्का? ओके. सो आई कैन सी बेटा कि मेरे को यहाँ पे 2 फॉर्मूलेस दिए हुए हैं. अब तुम बोलोगे यार सर हमको 2 फॉर्मूलेस क्यों दिए हुए? व्हाट वाज द रीजन? तो बेटा एग्जाम में ना ये लोग इस पे आपको ट्रिक करते हैं. ठीक है, आप लोग यूजुअली ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे क्योंकि ये हमको 12th में था. बट कई बार व्हाट दे डू इज दे आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन विथ यू वंस यू अंडरस्टैंड TU एंड MU. ठीक है, बट एक चीज क्या याद रखनी है, अपने बुक्स में मार्क कर लो, ये दोनों ही फॉर्मूलेस. ओके, बोथ द फॉर्मूलास आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, हम लोग बुक्स में ना कुछ कुछ मार्किंग करेंगे. सो इसके बाजू में लिख दो बी फॉर बॉम्बे, जस्ट राइट बी. Okay, now when I write B, it only means कि I have to by heart this. मतलब ये फॉर्मूला मुझे by heart होना चाहिए. Okay, इकोनॉमिक्स अपना MCQ पैटर्न है, तो अपने को ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं रखनी है, बट कुछ कुछ चीजें अपने को याद रखनी है, उसमें अपन मिस्टेक नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? यस. ओके बेटू, चलो. अभी थोड़ा TU एंड MU को समझते हैं. ठीक है, ये अपना लास्ट टाइम नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था ना? परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. बच्चों व्हाट्स योर नेम? ब्लैक टी शर्ट. अच्छा हाँ, अरे तू तो मेरे नाम वाला है. हाँ ओके. सो अभी यश है. ठीक है. नाउ यश ना रियली रियली लव्स आमरस. ठीक है, आमरस हम सबको पसंद है, हाफुस केरी. यस, तो उसको आमरस बहुत पसंद है, उसके मुंह में अभी से पानी आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज यश वाज लाइक, आज सर का जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं घर भाग के सीधा आमरस पीने वाला हूँ. ठीक है, लेक्चर खत्म हुआ, किसी को बाय वाला, सीधा बैग लेके घर भागा. एंड घर जाते ही he had the first आमरस. ओके. नाउ जब तुम पहली बार कोई कमोडिटी कंज्यूम करोगे, स्पेशली मेरे लेक्चर में बोर होने के बाद, तो कितना अच्छा लगेगा? यस. हाँ भी बोल रहे. पैसा बर्बाद. ठीक है. सो आमरस उसे पिया. लेट्स से ही गेट्स फर्स्ट कंजम्पशन में हाईएस्ट यूटिलिटी आएगी. यस और नो? यस. तो लेट्स से उसको 10 का यूटिलिटी आया. ओके. नाउ कैन एनीबडी टेल मी मेरा टोटल यूटिलिटी क्या होएगा? 10. क्या बात कर रहे हो? सेम आएगा. क्यों? समेशन ऑफ ऑल यूनिट्स. अब एक ही तो यूनिट है, तो सम में क्या आएगा? 1. यस. तो माई TU and MU is the same. Now an important thing, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि TU और MU का टेबल बनाओ. वो आपको पूछेंगे at what level of consumption is my TU equals to MU. तो तुम क्या लिखोगे? First consumption. Okay. At the very first consumption, my TU is equal to MU. ये दिमाग में याद रखना बेटा. We are not here to ratify economics. We are here to do exemplary in our exams. तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये कॉन्सेप्ट का वो ध्यान में रख के चलना. सो व्हाट विल एग्जाम आस्क यू कि यश टेल मी एट व्हाट लेवल ऑफ कंजम्पशन विल माय TU बी इक्वल टू MU? 1. और कोई भी कंजम्पशन है जिसपे दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं, इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट कमोडिटी. ठीक है.
प्लीज अपने नोट्स बनाते रहना, अपने हिसाब से जो भी लिखना है बुक्स में लिखते रहना, बुक को पूरा स्क्रिबल कर देना, ठीक है, बट ऐसे कि तुम पढ़ सको बाद में। ऑलराइट, चलो। नाउ उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसने सोचा चलो यार और एक पी लेता हूं, ठीक है। ही हैड द सेकंड कंजम्पशन. नाउ व्हेन ही हैड द सेकंड कंजम्पशन, डू यू थिंक ही विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी? No, he will not get the same amount of utility. So let's say उसको second consumption से मिला utility of 7. He got a utility of 7. Okay? अब बच्चों, your name? तनिष्का. तनिष्का, मेरा TU कितना हो जाएगा? 17 कैसे बेटा? So 10 of the previous consumption, 7 of the current consumption. Do we all agree? Yes, ये 12th में किया है बेटा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आंसर्स पे. यस, माई TU विल बी 17. ओके. अब इसकी मम्मी आई, ठीक है. मम्मी ना वो कहीं तो गई थी मार्केट एंड अभी आई वापस, एंड मॉम इज लाइक, अरे तू क्या कर रहा है, अभी सब मेहमान बुलाए. इज लाइक, कब बुला ये सब प्लान? इज लाइक, अरे सुबह मैं और मामा बात कर रहे थे तो अचानक से प्लान बन गया, सब लोग घर पे आ रहे हैं, ठीक है. आज पहले आमरस बनाया तो मैंने सबको घर पे बुला लिया. होता है ना, अपन सबको घर पे बुलाते रहते, आओ खाओ. यस. तो इसको पता चला. अब एक बात हमेशा होती है, अगर तुमने गेस्ट के आने के पहले कुछ भी खाया है तो तुम गेस्ट को नहीं बता सकते कि मैंने इतना खा चुका हूं, तुम लोग खाओ. यस और नो, है ना. तो सब इसके मामा एंड वाला है, इसके साथ खाना खाने बैठा. तो नाउ ही हैड द थर्ड कंजम्पशन. खाना खाने बैठा, सबके साथ आमरस तो लेना ही पड़ेगा. सो हैड द थर्ड कंजम्पशन. नॉट थर्ड कंजम्पशन, उसका यूटिलिटी हो गया 4. दिव्या, टोटल यूटिलिटी 21. 10 plus 7 plus 4, या सिंपली 17 plus 4. ओके. अब और एक आया, फिर नानी आई. नानी ने बोला, अरे कितना कमजोर हो गया यश, तू क्या करता है बेटा, सीए पढ़ पढ़ के एकदम पतला हो गया है तू. ठीक है, बैठ मेरे साथ और एक खा. ठीक है. और ऐसे करके यश को चौथा आमरस भी खिला दिया. नाउ अब इसको पता चल गया था, इसके पेट में से डकार आ चुका था, ये गले तक आमरस से भर चुका था. So at this point he knew कि मेरे को ये कंजम्पशन से कुछ भी नहीं मिला. I am extremely full. I am extremely full. अब दिव्या, TU कितना आएगा? क्या बात कर रहा है, वापस 21. क्यों? रुकना यार. हाँ, यूटिलिटी नहीं मिला तो मतलब 21 ही लिखना चाहिए मेरे को. Is everybody agreeing with him? Yes. क्यों 21 ही लिखेंगे? क्योंकि ये कंजम्पशन से मुझे कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं. अगर मुझे कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं तो मेरे टोटल यूटिलिटी में बढ़ेगा क्या? कुछ तो मिलना चाहिए ना. यस, मैं आपको बोलूं बेटा ये ले 10 रुपए दो, 10 रुपए तो दो पहले. यस और नो? यस. सो माई टोटल यूटिलिटी विल बी 21. अब ना यश का फेवरेट भांजा आया, ठीक है. यश का भांजा ना यश को बहुत प्यार करता है. मामू 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 करके सीधा इसको बंदर की तरह चिपक गया, ठीक है. अब ये तो ऑलरेडी यहां तक फुल था तो पहले ही हिल चुका था. फिर मामू के साथ टाइम पास किया और यश की दीदी बुलाने आई कि चल बेटा खाना खा ले. तो भांजा बोलता है, नहीं मैं मामू के बिना नहीं खाएगा. अब दीदी ने क्या बोला कि चल ना, तूने तो 2 ही आमरस खाए, मैंने देखा है तेरे को 4-4 बोल आमरस पीते हो, थोड़ा बैठ जाओ उसके साथ तो खा लेगा. वो मना कर रहे, फिर भी दीदी ने फोर्स किया और भांजा इसका प्यारा खा नहीं रहा इसके बिना, ठीक है. पहली बार इसको अपने भांजे को मारने की पूरी वो इच्छा आई थी. ठीक है, बट फिर भी बेचारा बैठ गया कि चल मैं खाता हूं. फिर इसे नाटक किया 1 चम्मच लेने का. तो भांजा इसका बहुत शाना था, जितना ये खाता था उतना ही वो खाता था. तो फिर उसकी मम्मी खिला रहे, नहीं पहले मामू को बोलो खाए. ठीक है, ऐसे कर करके बेचारे को 5वां भी खिला दिया, ठीक है. अब 5वां खिला दिया ना तो भी यश सहन कर गया था, बट इसके बाद इसके भांजे को लगा कि चलो मामू खा लिया, अब खेलते हैं. और खेलने में सबसे पहले इसने WWE का स्पीयर मारा इसके पेट में. अब यश का पेट जो एक्सट्रीमली आमरस से भर चुका था गले तक, उसमें जब कुछ लगेगा तो क्या होएगा? बस उस दिन यश ने आमरस को इस तरह देख लिया और उसके कम्बोर्ड ने भी इस तरह देख लिया कि दोनों ही 2-3 साल तक नहीं सोचेंगे कुछ भी आमरस के हिसाब के या कलर का खाने का, ठीक है. जैसे ही पेट में फाइट पड़ा, सबसे पहले यश वॉशरूम भागा, कम्बोर्ड को गले लगाया और सारा आमरस, ठीक है. यस बेटा, एक्चुअली इमेजिन नहीं करना है, पॉइंट में रहो तुम लोग, मुंह बना रहे हो सबके सब, ठीक है. नाउ जब तुम्हारा आमरस पेट से बाहर निकलता है
तो क्या वो अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? बुरी चीज। तो डू यू थिंक उसको इसमें कुछ मजा आएगा? आहा क्या उल्टी किया मैंने होएगा ऐसा कुछ? नहीं। सो ही गॉट डिसयूटिलिटी, ही गॉट डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी मतलब how he was feeling before the consumption, he's feeling worse than that after this consumption. Okay, what he was feeling before the consumption, he's feeling much worse after the consumption. देखो भूख लगी थी और आमरस खाया तो अच्छा लगा, yes. अब आमरस निकल गया तो you will not feel so pleasant, no, your stomach will hurt and everything. Do we agree? Yes. So what happened? Now he is having disutility. मतलब ये पांचवा बॉल जब उसने कंज्यूम किया, उसके पहले का जो उसको यूटिलिटी था वो और कम हो गया. मतलब this consumption hurt him rather than giving him any kind of utility. Do we agree? Yes. हाँ. अभी बच्चू, your name? Vedant. Please tell me what will be my total utility? 16. How come 16? 21 plus minus 5. तो ये minus plus minus minus हो जाएगा and my answer will be 16. My answer will be 16. अब बेटा जो हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं ना एग्जाम में, वो देखो कैसे आएंगे. How will the questions be? Let us understand that first. Firstly, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि at what consumption TU equals to MU, तो हम क्या लिखेंगे? First consumption. ठीक है? Then I will ask you, where do you think Yash is reaching the point of satiety? Fourth unit. Okay? बच्चे एक बात बताओ, टोटल यूटिलिटी यहां पे भी 21 है, यहां पे भी 21 है. Then why are we saying the fourth unit is the point of satiety and not the third one? कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? एक जन बोला. हाँ बेटा. नो, लास्ट बेंच. No marginal utility was derived. Okay. But how is that leading to my saturation? Point of satiety. Satiety मतलब मैं सैचुरेट हो गया, बहुत खा लिया, अब हो गया मेरा ऐसा. दिव्या बोल, तू बोल रहा था. तो 21 पहले भी पहुंच गया. तू बोल रहा है कि यूटिलिटी हाईएस्ट पहुंचा, मैं बोल रहा हूं 21 तो 2 बार है, तो हाईएस्ट तो 2 बार है ना बच्चा. यू ऑल आर नियर द आंसर, बस थोड़ा उसको प्रॉपरली वर्ड करो. हाँ यश. फोर्थ स्टेज के बाद उसका डिस्यूटिलिटी था, बट फोर्थ स्टेज पे उसको पता था कि और एक खिलाया जाएगा उसको नहीं. गेट माय पॉइंट? यस. सो आप सबका आंसर इज नियर द बॉल पार्क. अंडरस्टैंड बेटा. जब मैंने सिर्फ 3 आमरस के बॉल खाए थे, यश ने 3 आमरस के बॉल खाए थे, तब क्या उसको पता था कि फोर्थ कंजम्पशन पे उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी? डिड ही नो दैट? नो. तुमको पता है क्या कौन से पॉइंट के बाद आपको बिल्कुल यूटिलिटी नहीं मिलेगी? नहीं. बट आफ्टर ही हैड द फोर्थ बॉल, ही कंफर्म न्यू कि भाई आई एम सैचुरेटेड, हो गया मेरा, इससे मेरे को कुछ भी एमयू नहीं मिला है, आई एम डन. डू वी अग्री? यस और नो? यस. सो it was after the fourth consumption when he did not derive any marginal utility, he was like I am saturated. इस कंजम्पशन से मुझे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिला, आई एम सैचुरेटेड, आई हैव रीच्ड माई पॉइंट ऑफ satiety. That is why point of satiety is not when TU is maximum, but it is where TU is maximum and MU is 0. समझा? पक्का? Okay? So my fourth consumption is my point of satiety. Clear to everybody beta? Yes? Okay. Now, which consumption gives me disutility? Fifth consumption. Fifth consumption is giving me disutility. Yes beta? So मेरा जो disutility है वो यहां से चालू हो रहा है. Alright. Now kids, अगर आप notes में देखोगे ना, if you see in the notes, आपको टेबल दिया हुआ है. We are going to ignore this table, और what you can do is आप ये टेबल को मेरे को यहाँ पे प्लॉट करके दिखाओगे.
You have a choice. You can plot the numbers we have taken over here. कम क्वांटिटी है, कम हमने नंबर ऑफ यूनिट्स लिए हैं, और यू कैन टेक दिस टेबल एंड प्लॉट इट. बट आई वॉन्ट यू टू मेक द TU and MU का डायग्राम, वॉट एवर यू रिमेंबर ऑफ इट. ठीक है? कितने को कॉन्फिडेंस है कि याद आएगा मेरे को TU MU का डायग्राम? रेज योर हैंड. 2 3. ओके, ठीक है. नाउ देखो, मैं आप लोग को ना मार्कर्स बना के दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग उसके आगे का खुद से करोगे. चलो मेरे को ये टेबल में से बता दो, वेयर इज माई TU and MU इक्वल? क्या बात कर रहे हो, इसमें भी फर्स्ट पे ही होएगा? सो यू मीन टू से वॉट एवर आई डू, माई फर्स्ट यूनिट विल ऑलवेज बी इक्वल इन TU and MU. इज दैट वॉट यू आर सेइंग? ओके. स्नेहा, विच पॉइंट इज माई satiety? 6th. Vedant, why is 6th and not 5th my satiety? Okay, so my point of satiety का दो conditions है, MU should be 0 and TU should be maximum. Am I having my MU as 0 on 5th commodity, 5th consumption? Yes or no? No. It's happening on the 6th consumption. Do we all agree? Yes. So this will be my point of satiety. Okay. And this is my disutility. All right. Whatever you're plotting, please plot accordingly and make the diagram. I'm giving you 5 minutes है, उससे ज़्यादा नहीं. फटाफट करो. Okay? Are we clear with this? Yes? So, अगर हम briefly इसको याद करें, तो अभी तक हमने जो भी किया, TU MU we are familiar with it. ठीक है? एक बार इसको करते. मैंने आपको कहा था कि लॉ इज समथिंग दैट स्ट्रिक्टली इज टू बी फॉलोड. मतलब जब आप एक फिनोमिनन को डिराइव करोगे तो वो ऐसे ही प्ले आउट करेगा. बट एवरी लॉ विल हैव अजम्पशंस, दैट इज एक वेरिएबल के ऊपर काफी सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं. तो टू स्टडी दैट वेरिएबल इन आइसोलेशन, हम लोग बाकी सबको अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर कांस्टेंट, दैट इज सेटेरिस पेरिबस. ओके, देन जो लॉ ऑफ DMU है, ठीक है, law of DMU is based on two important things. Human want is unlimited. Each want can be satisfied for a particular period of time. Other things being equal, additional benefit which Yash will derive from increase in Amraska bowls will keep diminishing with every increase in Amraska bowl. Yes? Then हमने ये किया था. All right. हमारे assumptions क्या थे? हर एक यूनिट सेम साइज, टेस्ट एंड कलर का होना चाहिए. पहला बोल दूसरा पतीला नहीं चलेगा. कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए. सुबह 2 यूनिट्स खाए, शाम को 3 यूनिट्स खाए, वैसा नहीं चलेगा. रैशनैलिटी, यश शुड बी रैशनल. मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया था कि भाई बिहेवियरल इकोनॉमिक्स करके पूरा नया फील्ड आ रहा है, विच इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कंज्यूमर्स कैन नॉट बी रैशनल. कंज्यूमर्स आर इमोशनल बीइंग. तो दैट वाज द बुक आई रिकमेंडेड टू यू. ठीक है? देन कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है. ये मैंने आपको कहा था. वी टुक एन एग्जांपल कि उर्वी का बर्थडे है. उर्वी को मम्मी उसकी 1 लाख रुपीस देती है एंड बोलती है कि जा बेटा मजे कर. When she has 1 lakh rupees, she will not sit to bargain much with anybody. But when that 1 lakh rupees comes down to 10,000 rupees, suddenly all that bargaining power will come back. कि नहीं नहीं भैया 1200 का कैसा, 800 का दे दो, मेरा बर्थडे है 700 का दे दो आज तो. यस. फिर हमने एग्जांपल लिया था कि हाउ अ पुअर पर्सन हु हैज 100 rupees losing 20 rupees will be a much bigger disutility or a much bigger problem for them than you having 2,000 rupees and losing 20 rupees. Okay? तो ये हमने बात किया था.
देन एक्सेप्शंस क्या आते हैं, हॉबीज एंड रेयर कलेक्शन. सो वट एवर आई लव टू डू, इफ आई गेट टू डू मोर ऑफ इट आई विल लव इट. और मैंने आपको कहा था एक्सेप्शंस मतलब क्या, लॉ कहता है जितने ज्यादा यूनिट्स उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी. तो एक्सेप्शंस क्या बोलता है, जितने ज्यादा यूनिट्स उतना ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. सो हॉबीज एंड रेयर कलेक्शंस हो गया, एबनॉर्मल पीपल हो गया. देन इंडिविजुअल गुड्स, राइट. इंडिविजुअल गुड्स मतलब तुम टीवी एक ही खरीद सकते हो. हाउ विल यू कंज्यूम मल्टीपल टीवीज टू फाइंड आउट दैट यूटिलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल. फिर लिमिटेशंस क्या है डीएमयू के, कार्डिनल मेजरमेंट अनरियलिस्टिक है, यू कैन नॉट मेजर द कार्डिनल यूटिलिटी. अनरियलिस्टिक कंडीशंस, होमोजेनियस गुड होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, दीज आर अनरियलिस्टिक सिचुएशंस टू मीट. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, वो मैंने आपको बोला पॉसिबल नहीं है. जैसे स्टॉक ऑफ मनी कम होता है, एमयू ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाता है. मतलब वी आर मोर एंड मोर कॉशियस अबाउट स्पेंडिंग ईच रुपी दैट यू हैव. इनएप्लीकेबल टू इंडिविजुअल गुड्स हमने ऊपर ही देखा. सिंगल कमोडिटी मॉडल, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि व्हेन यश इज सिटिंग फॉर लंच, ही विल नॉट ओनली सिट विद द बोल, ओके, ही इज गोइंग टू ईट रोटी सब्जी ऑल्सो. सो वी कैन नॉट से कि एक टाइम पे सिर्फ वो एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है. There are multiple consumptions that might happen. So just having a single commodity model of consumption might not work properly. Okay? फिर हमने कंज्यूमर सरप्लस का बात किया था, जिसमें बेटा I took an example कि वर्षिता का बर्थडे है and for her birthday dress she is going to Azort and she is ready to pay 4,000 rupees. But when she goes to that section and she finds the dress she loves, she finds out कि वो dress actually 5,000 का है. But then she figures out कि अरे इस पे तो डिस्काउंट दिया हुआ है. So that dress was actually of 3,000. So the 1,000 extra that she was ready to pay, which she did not have to pay, becomes her consumer surplus. Then हमने बोला कि assumption क्या है, utility can be cardinally measured in monetary units. मतलब not only am I able to measure the utility, but I am also able to give it a monetary value. This remains constant, independent of each unit can be measured. DMU holds good. Explanation: price we pay for a commodity is less than the satisfaction derived from it. Satisfaction जो वर्षिता को मिल रहा है is of 4,000 rupees, but for that she is only paying 3,000. Okay? From purchase of such commodities, we derive a good deal of extra satisfaction or surplus over and above the price we pay for them. This is consumer surplus. So, law बोलता है the excess of the price, मतलब 1,000 rupees which Varshita would be willing to pay rather than go without the dress is the consumer surplus. So, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब वर्षिता काउंटर पे जाती है तो उसको बोलते हैं मैम वेरी सॉरी, इस पे तो सिर्फ 1,000 रुपीज ऑफ है, किसी ने इसको गलत सेक्शन में रख दिया था, वी आर वेरी सॉरी वी कैन नॉट गिव यू 20% डिस्काउंट. So at that point Varshita is like, हाँ 4,000 ही है ना, चलेगा चलेगा ले लो. So she was willing to pay 1,000 extra rather than go without that dress. That proves that she is getting a consumer surplus. Are we clear? Yes. फिर मैंने और सूर्या ने डिस्कस किया कि भाई 1 यूटाइल के लिए 1 रुपी आई एम रेडी टू पे. सो इफ आई एम गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 30, हाउ मच एम आई रेडी टू पे सूर्या? 30 रुपीज बेटा. 30 यूटिल्स मिल रहा है तो आई एम पेइंग 30 रुपीज. बट हाउ मच एम आई एक्चुअली पेइंग? 20. आई एम एक्चुअली पेइंग 20. तो इसके वजह से आई एम गेटिंग अ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ 10 रुपीज. देन यहां पे फोर्थ वाले यूनिट का, सॉरी सिक्स्थ वाले यूनिट का मैंने बोला आई एम गेटिंग 20 यूटिल्स, सो आई एम रेडी टू पे 20 रुपीज. हाउ मच एम आई एक्चुअली पेइंग? 20. सो मैंने आपको बोला कि एट द सिक्स्थ कंजम्पशन my marginal utility is 20, I am ready to pay 20, I am paying actually 20, so the price and my marginal utility have come equal, So mu is equal to price at the sixth commodity. Then we asked Tanishka, okay, Tanishka, should we purchase the 7th unit? So no, we should not purchase the 7th unit. Are we clear beta? Yes. Okay, now इसको हम लोग डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर प्राइस चेंज हो गया, प्राइस चेंज हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे बिहेव करेगा. अभी तुम मुझे एक बात बताओ, इसको न्यूमेरिकली पहले समझाता हूं, ठीक है. वर्षिता was ready to pay 4,000, she paid 3,000. How much was her consumer surplus? 1,000.
अब उसको पता चलता है कि गलत शेल्फ में रख दिया था, ठीक है, इसमें 40 नहीं 50% ऑफ है. सो दैट ड्रेस इज नॉट ऑफ 3000, दैट ड्रेस इज एक्चुअली ऑफ 2500. तो इसको एडिशनल 500 रुपीज का कंज्यूमर सरप्लस हुआ कि नहीं? यस और नो? यस बेटू, यू नीड टू गो वॉश योर फेस. पक्का? आई थिंक सो यू डू. नहीं ना? ऑलराइट. सो यही चीज बेटा उन्होंने यहां पे दिखाई है कि पहले ये प्राइस था और दिस वर्षिता वाज रेडी टू पे. सो ए इज 4000 रुपीज हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, पी इज 3000 रुपीज. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्षिता का कंज्यूमर सरप्लस इतना था. यस और नो? यस. बट नाउ द प्राइस हैज कम डाउन टू 2500. The price has come down to 2500. तो बेटा एक बात बताओ, won't she get additional consumer surplus? Yes, she'll get consumer surplus. तो a fall in price from P to P1 increases consumer surplus from APE, APE to AP1F. P1F. Yes, उसका कंज्यूमर सरप्लस उतना बढ़ गया. The increase in consumer surplus of existing buyers who were earlier paying price P, मतलब हमारे एग्जाम्पल का 3000. The consumer surplus now available to new buyers who start buying the commodity due to lower prices, the triangle C. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि एक छोटू सा ट्राइंगल बना हुआ है, दिख रहा है ये वाला? यस. ये क्या बोल रहा है कि क्योंकि अभी ये ड्रेस 2500 रुपए का है, जिनका ओरिजिनल बजट 2500 था, वर्षिता का बजट तो 4000 था, बट जिनका ओरिजिनल बजट 2500 था वो भी अब परचेस कर पाएंगे ना? यस. तो वो लोग भी अगर सोचो 3000 सोच रहे थे या 2800 सोच रहे थे, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा. यस. सो दैट इज व्हाट दे आर शोइंग बाय ट्राइंगल सी. द कंज्यूमर सरप्लस नाउ अवेलेबल टू न्यू बायर्स who started buying the commodity due to its lower prices. Is this clear? Yes? Okay. Now one thing, I think so recording का कुछ तो issue हुआ था. So मैंने जो अभी तक आपको सिखाया था ना, before I revised everything with you, वो record नहीं हुआ है. That's why I revised the whole thing with you. Recording में है. कभी भी आप recording revise कर रहे हो और कुछ भी ऊपर नीचे लगे, tell me, we will explain it again. Okay बेटा? Yes? Now, application. मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट तो तुमने निकाल दिया, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे? नाउ बेटा इसका एप्लीकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. एंड रियल लाइफ में भले इसके अजम्पशन अनरियलिस्टिक है, बट इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय कंपनी नो, तो एलेक्स हॉर्मोजी करके देयर इज दिस गाय, ही डज फैंटास्टिक बिजनेस आइडियाज. मतलब आई फॉलो हिज बिजनेस एडवाइसेस लाइक यू नो एज ए गोल्डन वर्ड्स. उसने एक रील बनाया था, उसमें उसने बोला कि whenever I want to find the right price for a product, I will ask people what price would be so high that it would sound ridiculous. ठीक है? So for example, CA फाउंडेशन के लिए मैं बोलूँ 3 लाख रुपए लगेगा. So this is ridiculously high. फिर मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि how much would you be willing to pay if I am giving you this? तो let's say you are like sir we are ready to give 100 rupees. मैंने प्रोडक्ट का प्राइस सोचा था 80 rupees. ठीक है? फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक दिस इज अ बार्गेन, मतलब वाओ व्हाट अ डील. तो लाइक सर 90 रुपीज का होगा तो वैसा फील होगा कि अरे यार इतना सब कुछ सिर्फ 90 रुपीज का मिल गया. वी आर रेडी टू पे 100 बट 90 में मिलेगा तो वाओ वाला फीलिंग आएगा. ठीक है? एंड एट व्हाट प्राइस विल दिस बी रिडिकुलस कि यू विल नॉट ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब सर आप बोलोगे सीए फाउंडेशन 50 रुपए में करवा दोगे तो हमें यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है यार प्रोफेशनल कोर्स है, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. राइट? सो 4 क्वेश्चन से आपको पैरामीटर्स मिल जाते हैं कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हो. ठीक है? आई माइट हैव गॉटन 1 or 2 थिंग्स हियर एंड देयर, बट दिस वाज द क्रक्स. सो नाउ आई नो कि इफ आई प्राइस माय प्रोडक्ट एट 120 रुपीज, ठीक है, इट विल बी एक्सट्रीमली रिडिकुलस. इफ आई प्राइस देम एट 100, people will have to go a little extra mile, but they're ready to pay for it. And at 90, if I can provide, if I can reduce the cost in such a way कि मैं 90 rupees पे service provide कर सकूं, so my consumers will have a wow effect and they will always be in love with my product. तो ये जो pricing decisions है ना बेटा, this come through consumer surplus.
इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टुमारो व्हेन योर कंसल्टेंट्स एंड यू आर वर्किंग विथ योर क्लाइंट एंड टेलिंग देम कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे करना है, ये चीज मत भूलना. दिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू. इंडिया में ना लोग बिजनेस कैसे करते हैं, मेरे को 100 रुपए का बनता है, मैं 120 का बेचेगा. अरे भाई कंज्यूमर को तो पूछ के वो 120 देने के लिए रेडी है कि नहीं. कंज्यूमर बोलेगा मैं 80 से ज्यादा नहीं देगा, तो तेरा प्रोडक्ट तो फेल. So you should ask the consumer. Consumer is selling 80. So you should figure out कि तुम 100 का क्यों बना रहे हो. You have to start from the end. You have to ask the consumers कि बेटा तुम इसके लिए कितना दोगे. Then you work out a way कि तुम उतने में उसको provide कर सको. That is the blueprint for a successful business. Get the point? Yes. So tomorrow when you are consultants and managers or whatever, or you start your firm, understand how will you price your services, what satisfaction your client is getting from your service. You get my point? Yes. I told you guys when I laptop format करवाया था recently, right? So laptop formatting का 300 rupees में भी होता है, 650 rupees में भी होता है. You get my point? It happens in 300 also, it happens in 650 also. 100 रुपए के भी जूते मिलते हैं, 500 रुपए के भी जूते मिलते हैं, 2000 के भी मिलते हैं. So you will have to decide कि मैं कौन से consumer segment के लिए काम करेगा, मैं किस लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा. So in all this, consumer surplus will help you बेटा. Is this clear? Yes? Okay, let's understand. Is a measure of welfare that people gain from consuming goods and services. It is important for a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by different segments of their consumer, because who perceive large surplus are more likely to repeat their purchase. Let me give you the best example for this. अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, तो भी आपके पेरेंट्स आपके घर में से हर संडे या कभी भी डीमार्ट जाएंगे, हर महीने में 1 या 2 बार, एंड पूरे महीने का राशन भर के लाएंगे. मेरे घर में यही होता है. माय पेरेंट्स विल गो टू डीमार्ट, महीने भर का राशन भर के लेके आ जाएंगे. दिस हैपेंस एवरी मंथ. एवरी मंथ दे विल गो टू डीमार्ट. व्हाई? डीमार्ट में ना सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिलता है. ओके, the goods are extremely cheap, they are not quality compromised, and at the same time DMart ना बहुत smartly हमेशा बिल के नीचे तुमको लिख के देता है कि तुमने कितना पैसा MRP पे बचाया. एंड वो कोई फालतू MRP नहीं लिखेंगे, एक्चुअल MRP एंड DMart के प्राइस का डिफरेंस लिखेंगे. सो माय फादर हैज अ हैबिट, जब भी घर पे सामान आएगा ना, वो बिल लेके बैठेंगे एंड देन he'll make a stick कि हाँ ये सामान आया, ये सामान आया, ये सामान आया. एंड फिर लास्ट में ना हमेशा बोलते हैं, यशु यार इतना पैसा बचा. What is that feeling? Consumer surplus. That feeling is consumer surplus. So much so, हम लोग कभी Instamart या Blinkit से सामान मंगाते हैं ना, तो मेरी मम्मी बोलते हैं कि डीमार्ट के वक्त क्यों नहीं बोला ये सब, अभी क्यों मंगा रहे हो तुम लोग, तुम लोग को पैसे की कदर नहीं है. तुमको लगेगा कि बड़े होने के बाद ये गाली नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है. आई एम मैरिड, आई एम 30 एंड स्टिल माई मदर टेल्स मी दिस. ओके, सो देयर इज नो एस्केपिंग दैट. बट द पॉइंट इज दैट consumer surplus wala feeling is so hard hitting, and DMart has championed that concept कि भाई consumer जब भी जाता है ना, उसको वही लगता है हाँ यार मेरा कितना पैसा बचा. They will actually spend on rickshaw and go to DMart. Don't we agree? Yes. अगर आपके फैमिली में DMart का रूटीन होगा ना, तो आपको एग्जाम्पल परफेक्टली समझेगा कि क्या होता है. ओके, दैट इज ऑलवेज द केस. दूसरा और एक कैसा होता है, अभी ना मेरा जो टेलर है, सो व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे जो टेलर थे ना, ही हैड वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स विद वेरी गुड टेक्सटाइल कंपनीज. ठीक है, सो आई ऑलवेज गेट माई सूट्स एंड एवरीथिंग स्टिच फ्रॉम दैट गाय ओनली. व्हाई? बिकॉज आई गेट वेरी हाई क्वालिटी टेक्सटाइल एट अ होलसेल रेट. जो मेरे को दुकान में 2000 का मिलता है, वो मेरे को उसके पास 1000 का मिल जाता है. प्लस आई गेट हैंडमेड स्टिचिंग. व्हाट इज दैट? कंज्यूमर सरप्लस. ही इज इन माहिम. Okay, I stay in Thane, so I'll go from Thane to Mahim to him. Okay, why? Because that consumer surplus. तुम समझे बेटा? That is why this concept is extremely important. तुम practical application समझ पा रहे हो ना इसका? ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है. DMart is doing this to you. ठीक है? और एक ले लो. अगर महावीर नगर है, ठीक है, पूरा खाऊ गली, राइट? महावीर नगर में हर जगह तुम जाओगे तो किमची नूडल्स एंड ऑल है ना, 150, 160, 200 का मिलता है, राइट? But if you get somewhere original वाला for 120 rupees, क्या बात कर रहा है यार, ये तो मेरे सामने पैकेट फाड़ के निकाल रहा है, मतलब ओरिजिनल है.
और हर जगह 160 का मिल रहा है, इसके पास 120 का मिल रहा है, तो तुम दोस्त को भी बोलोगे ये सुन सुन, वो कोटक बैंक है ना, उसके पास ना ये वाला अपना किमची वाला है, वहीं से जाके खाना, ओरिजिनल भी देता है और 120 का भी देता है, बोलोगे कि नहीं? यस, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस इन योर माइंड. क्लियर बेटू? यस, ओके. Understanding the nature and extent of surplus can help business managers make better decisions about setting prices. If a business can identify a group of consumers with different elasticity of demand within their market and market segments which are willing to pay higher prices for the same products, the firm can profitably use price discrimination. इसका सिंपल मैं बोलता हूँ, कहीं पे भी आप सीए इंटर या ऐसे किसी क्लास के लिए जाते हो तो आराम से क्लास में 100-150 बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है? अभी कल को कोई क्लास आता है, वो बोलता है कि यार सीए इंटर में ना बच्चों को 100-150 क्लास में बैठ के ना तो मजा नहीं आता है, व्हाट दे वांट इज के 50-60 बच्चे हो मैक्स. तो कल कोई क्लास चालू होता है कि बैच 50 ऐसा करके उसका नाम आता है, बैच 50 क्लासेस, मतलब कोई भी बैच ले लो 50 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, और उसका फीस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस है. सब लोग रेडी नहीं होंगे पे करने को, बट एक छोटा सेगमेंट ऑफ मार्केट रेडी होगा ना पे करने को कि हाँ सर मेरे को ना शांति चाहिए, मेरे को कम बच्चे चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, आई वांट टू फोकस ऑन माय इंटर स्टडीज, आई एम ओके पेइंग 150 रुपीज इंस्टेड ऑफ 120 रुपीज. होएगा कि नहीं? यस. So if I understand consumer surplus, if I understand that people want this and they're ready to pay for this, I can do price discrimination. कल को I'll ask कि आपको सी इंटर रेगुलर बैच चाहिए कि आपको सी इंटर बैच 50 चाहिए? तुम समझे? यस. तुम रेगुलर चाहते हो, आ जाओ रेगुलर में, 100-150 बच्चे मिल जाएंगे. 50 चाहिए तो 50 में आ जाओ. यू गेट माई पॉइंट? बिकॉज आई नो कि 200 बच्चे आएंगे, उसमें से 50 बच्चे होंगे बैच 50 वाले, और बाकी के 100-150 में यहां पे बिठा दूंगा तो हो जाएगा. गेट द पॉइंट? यस, ओके. Large scale investment decision involve cost benefit analysis taken into account to the extent of consumer surplus that the project may fetch. Simplest example, अभी हम लोग ने हाईवे बनाया, अभी आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाओगे ना तो there is a elevated road that is getting made from घाटकोपर all the way to थाने, ठीक है? अब तुम सोचो, तुमने हाईवे बना दिया, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, बांद्रा वाली सीलिंग बना दिया. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बांद्रा वाली सीलिंग, ठीक है? Let's take example of Bandra Worli Sea Link. Okay, अभी जब आप बांद्रा वाली सी लिंक में जाते हो तो आपको 110 रुपीज एंड 70 रुपीज रिटर्न एंड 1 टाइम का टोल लगता है, ठीक है? अब जब ये बन रहा था तब गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई, बांद्रा से वर्ली पहुंचने में जो तुलसी पाइप रोड का, दादर स्टेशन का और ये सब का ट्रैफिक मिलता है, इट इज एक्चुअली टू मच. It is actually something that we cannot help because Dadar is very congested. We cannot increase the road size. So समुंदर से ही रास्ता निकालना पड़ेगा. Yes, but बाद में लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमको 70 रुपीज नहीं देने का है, हम ट्रैफिक में 10 मिनट बैठ लेंगे. तो तुम्हारा तो पोपट हुआ कि नहीं? Yes. तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? So तुम ये देखोगे कि are the people actually frustrated? Will they actually pay 70 rupees extra just to get somewhere faster? Just to not get stuck in the traffic? If yes, please go ahead with the project. If yes, please go ahead with the project. Samjha? Yes. So that is the point they are trying to make. Clear, Betu? Yes? Okay. Knowledge of consumer surplus is important when firm considers raising its product prices. Consumers who enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy products at higher prices. मतलब तुम किमची के लिए 180 रुपीज देने को रेडी थे, अभी उसने 170 का भाव वो 200 रुपीज कर दिया, तो विल नॉट बी विलिंग टू पे ना. तुमको कंज्यूमर सरप्लस ही 10 रुपए का था, अब वो प्राइस 30 रुपए से बढ़ा देगा तो तुमको नहीं चलेगा. क्लियर? It acts as a guide to finance ministers when they decide on products on which taxes have to be imposed and to extent which a commodities tax has to be raised. अभी तो मुझे एक बात बताओ, सिगरेट्स है, अल्कोहल है, इस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस लगता है, ठीक है? स्टिल पीपल परचेज इट, राइट? बट अगर जो कॉमन चीज है, जो हमारी नेसेसिटीज है, उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लग गया तो सरकार के अगेंस्ट बवाल हो जाएगा. बट जो मीडियम आती, कंफर्ट वाली चीजें आती है, उस पर अगर टैक्सेस बढ़ा दे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोचिंग क्लासेस में 18% जीएसटी लगता है,
ठीक है, आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम खाओगे तो 18% लगता है, होटल में जाके खाओगे तो 5% लगता है, बट बास्किन रॉबिन्स के शॉप पे जाके खाओगे तो 18% जीएसटी लगता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करेगी कि भाई वो आइसक्रीम पार्लर जा ही रहा है, वो 5% देने को रेडी है, 18% भी देगा। बट इफ पीपल वर लाइक नहीं नहीं 18% टैक्स हो गया, हमको आइसक्रीम नहीं खाने का है, तो सरकार का पोपट हो जाता ना। यस, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई जब हमको कंज्यूमर सरप्लस की समझ होती है ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ आइसक्रीम पे हमको टैक्स बढ़ाना चाहिए, सिगरेट्स एंड अल्कोहल पे और टैक्स बढ़ाएंगे तो भी लोग लेंगे, दे आर नॉट कंसर्न, बट विद अदर थिंग्स दे आर कंसर्न, दे विल बॉयकॉट द प्रोडक्ट, या हम पे बवाल हो जाएगा। समझ रहे बेटू? पक्का? यस। Okay. It is always desirable to impose taxes or increase rate of taxes on commodities yielding high consumer surplus because the loss of welfare to citizen will be minimal. मतलब कोई चीज है, जैसे अभी बीच में ना ट्रेन का भाड़ा बढ़ाने की बात हुई थी, लोकल ट्रेन्स का, तो भी बवाल किया था, राइट? अभी हम लोग को लगता है यार 5 रुपए तो बढ़ा रहे, उसके लिए क्यों लोग इतना स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट अगर आप सोचोगे ना बेटा, तो यू विल सी कि इफ आई वांट टू गो फ्रॉम विरार टू टाउन, I have to pay 30 rupees for a return ticket. Okay. Now, if I'm living in Virar, no offense to anybody, okay, but if I'm living in Virar, there is a chance that I belong to the middle class or to the lower middle class. Yes, I don't have that much financial prowess. अभी तुम सोचो दिन का 30 rupees, 6 दिन का काम, मतलब 180 rupees per week into 4, around about 720 to 800 rupees मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग का लग जाता है, और मैं कमाता ही 20-25,000 रुपीज हूँ। अब 20-25 हजार रुपए कमाने वाले के लिए अगर 1000 रुपए का सिर्फ ट्रैवलिंग हो जाएगा तो उसको परवड़ेगा क्या? नहीं। सो जब तुम उसको 30 से 40 करने का भी बात करते हो ना, इट टेक्स अ बिग चंक, अ बिग परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। इसलिए लोकल ट्रेन के प्राइसेस ज्यादा बढ़ते नहीं है। गेट द पॉइंट? यस बेटा, समझ में आ रहा है हाउ थिंग्स आर ऑपरेटिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड? क्यों रेलवे के भाव नहीं बढ़ते, क्यों डीमार्ट हम लोग भाग भाग के जाते हैं, यस, क्यों आइसक्रीम पार्लर पे टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि दिस सब्जेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली, कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तो तुमको ऑटोमेटिकली चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेकिंग सेंस टू यू? यस, ओके। ऑलराइट, नाउ लिमिटेशंस क्या है? इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। ऑब्वियसली यार तुम सरप्लस, अभी वो वर्षिता थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं मैडम मैं तो 4000 देना थी, आप ले लो, वोंट हैपन ना। यस, इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज, इन दिस केस कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इसका सिंपल मतलब क्या है समझो बेटा, रोटी कपड़ा मकान है, पानी चाहिए, है ना। सपोज यू आर स्टक इन बिटवीन अ डेजर्ट and somebody comes to you with water, but they say ये पानी आपको 20 रुपए पर लीटर नहीं 20,000 रुपए पर लीटर पड़ेगा, तुम दे दोगे ना? बोलोगे नहीं भैया, मरना वरना ठीक है, आप पहले बार्गेन करोगे नहीं ना। यू वोंट डू दैट, राइट? सो कह रहा है कि जो नेसेसरीज होती है ना, वो चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो उस पर हम लोग प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस नहीं देखते, उसका मिल जाना ही बहुत बड़ा कंज्यूमर सरप्लस हमको दे देता है, ठीक है। बट उसने क्या किया, the beginning, the exact word क्या यूज किया है, of the earlier units, ठीक है, of the earlier units they are saying। तो earlier units जो है उसमें हमको infinitely large consumer surplus मिलता है, मतलब we would have paid anything for it but we are getting it for so little, so it's infinitely large। okay बेटा? yes, अभी नमक 2 रुपए का जाता है पाव भाजी में, बट अगर पाव भाजी में नमक ना हो तो पूरी पाव भाजी कचरा ना। yes, so that way beta the consumer surplus is infinitely large, okay। the consumer surplus derived from a commodity is affected by availability of substitutes, okay। अभी समझो इंडियन रेलवेज है, ठीक है, इंडियन रेल्स का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट है, आई कैन गो बाय कैब, आई कैन गो बाय बस, आई कैन गो बाय फ्लाइट, देयर आर सब्स्टिट्यूट्स बट देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ओके। बट whereas Pepsi and Coca-Cola है, they are very close substitutes of each other। substitute मतलब एक की जगह दूसरा तुम कंज्यूम कर सकते हो, राइट? तो उस केस में आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है बेटा वो काफी अफेक्ट होता है।
मतलब यूजुअली जिन कमोडिटीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है वहां पे कंज्यूमर सरप्लस अपने को अच्छा खासा मिलता है, बट जहां पे सब्स्टिट्यूट्स है देयर इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन गोइंग इन आवर माइंड एंड सो द कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट सो मच। ओके, आपको पेप्सी 20 रुपए की मिल जाएगी तो आप देखो यार कोक भी तो 20 का ही है, तो इतना कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। ओके, बट इंडियन रेलवेज में देयर इज नो कंपैरिजन। तुम क्या बोलोगे 3 टायर और किसका कंपैरिजन करोगे? सो यूजुअली देयर इज अ हायर consumer surplus. Okay, there is no simple rule for deriving the utility scale of articles for which are used for prestige. ठीक है, अभी when I'm wearing something not because it's a diamond but because what it shows to people, how will I derive a consumer surplus? मेरा concern तो price है ही नहीं। My concern is not the price, I'm wearing it because it is expensive. तुम क्या बोल रहे हो कंज्यूमर सरप्लस कब मिलेगा? जब 4000 की चीज 3000 में आ जाएगी। बट मैं तो चाहता ही हूं कि मैं जो ले रहा हूं वो बहुत महंगा मिले, बहुत लोगों के पास ना हो, तो सरप्लस कैसे डिसाइड करोगे? आई तो वांट टू पे मोर। ओके, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज एमयू ऑफ मनी चेंजेस एज परचेजेस आर मेड, कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस। ओके, दिस assumption is unrealistic. The concept can be accepted only if it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that this cannot be done. Okay? Simple. All right. Chalo. We'll catch a 5 minutes ka break. Then I want to start with ordinal utility. Okay? हाँ बेटा. चलो हाँ बेटा, they'll learn. When they don't respect the time, this is what will happen. ठीक है? I am all in for fun, I am all in for jokes and everything, but discipline has to be there. Okay? चलो, let's understand ordinal utility. Okay? Now, ordinal utility क्या होता है, क्या नहीं? Let us understand in a very simple way. खोल दे बच्चों. First time, last time. Next time the door won't open. Okay? If I'm giving you a particular time, you take that much time only. Chalo, let's start with ordinal utility. Alright? So cardinal में क्या था बेटा? In cardinal, I can measure the utility in numbers. I am able to give it numbers. But when I'm talking about ordinal utility, I can only give them preferences or ranks. Okay, matlab I cannot tell how much of utility am I feeling or getting, but I can rank the utility I am getting. For example, let's say my favorite food is pav bhaji, then it is pasta, then it is burger. Okay, so if you ask me कि सर आपको highest utility किससे मिलेगा, तो I'll be like pav bhaji. आप मेरे को पूछो कि कितना utility मिलेगा, तो that is not something I can practically tell you.
कि हाँ पाव भाजी खा के मेरे को इतना यूटिल्स मिलता है, बट आई कैन टेल यू कि पाव भाजी खा के मेरे को हाईएस्ट यूटिलिटी मिलता है. मतलब माई वॉन्ट फॉर फूड इज सेटिस्फाइड टू द हाईएस्ट लेवल व्हेन आई हैव पाव भाजी. कैन वी डू दिस और नॉट? यस. So the ordinal approach is the ranking or the preference wala approach, and this is more practical also, and it is the one that we follow more for understanding utility. Is it clear? Yes. तो सर कार्डिनल क्यों इंपॉर्टेंट था? बेटा कार्डिनल में जब हम नंबर्स अज्यूम करते ना तो हमको काफी सेंस बैठता है कि यूटिलिटी कैसे ऑपरेट कर रही है, यूटिलिटी कैसे फील होती है. बट ऑर्डिनल यूटिलिटी से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. इज इट क्लियर? यस. अभी ये तुम्हारा एसिड टेस्ट है. एसिड टेस्ट मतलब क्या? अब तक तुमने जो भी पढ़ा है ना ये सब तुमको 12th में था. अभी जो पढ़ रहे हो आपको कहीं पे भी नहीं था. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम यू गेट इंट्रोड्यूस टू अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव नॉट स्टडीड. ओके. सो बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन विथ मी. अगर कुछ भी ना समझो तो पूछना. आस्क अ डाउट 100 times बेटा. ओके. आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. बट व्हेन यू गो आउट ऑफ द क्लास यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स अबाउट एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड हियर. ओके. Please remember what I told you in the first class. I am here for you. You are not here for me. Okay? It's my job to make sure कि आपको सब समझ में आए. तो please ask. मेरे को ऐसे देवी नहीं आएगी कि सूर्या को समझा नहीं है. सूर्या को पूछना पड़ेगा. Okay? चलो, let us understand. So इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं 3 jeans and 3 t-shirts लेता हूँ तो that will give me the least level of satisfaction. So that is my third preference. 5 jeans and 5 t-shirts less than C. And 6 and 6 मिला तो that is my highest preference. But इसको simply अगर मुझे समझना हो तो firstly देखो ordinal utility में 2 commodities ली जाती है. ठीक है. So हम लोग अपना study plan बनाते हैं. ठीक है. Let us understand this with a study plan. Okay. मैं CA फाउंडेशन की एग्जाम दे रहा हूँ. Now मेरा actual CA फाउंडेशन जैसा था उस वक्त मेरे क्या प्रेफरेंसेस थे वो मैं बता रहा हूँ कि I would love to study अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. अगर आप मेरे को बोलोगे कि विच सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टार्ट विद सर तो मैं हमेशा बोलूंगा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. माय सेकंड प्रेफरेंस वुड बी इको एंड क्वांट्स. इको एंड क्वांट्स. इसको क्या हुआ भाई? हाँ, जो इसको भी पढ़ने की इच्छा नहीं है. Eco and quants. And my third preference would be law and quants. Okay? So this would be my preference. मतलब मैं law के लिए ना बहुत चोरी करता था. मेरे को law पढ़ने का बिल्कुल मजा नहीं आता था. My sister is an LLM और मेरे को law पसंद नहीं है. ठीक है? So the point is कि if you ask me कि सर CA फाउंडेशन का कौन सा पढ़ के आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है तो this would be my ranking. अब तुम पूछोगे सर कितना यूटिलिटी मिलता था? That I cannot answer. But I have a favorite combination. I have a combination that I really like. Okay? I have a preference. मतलब if you give me a choice कि यश तेरे को क्या पढ़ने का, तो मैं बोलूंगा यार अकाउंट्स एंड इको. Get the point? Yes? Example समझा? पक्का? Okay. So this is my ordinal approach. Now, let us understand. Indifference. Indifference मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज रास्ते पे से तुम जा रहे हो. ठीक है. किसी का फोन गिर गया. तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं. ठीक है. यू क्रूअल ह्यूमन बींग्स, तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे इंसानियत के नाते लगेगा ना, अरे अरे बेचारे का फोन गिर गया, है ना. बट सपोज करो यू आर इनडिफरेंट टू इट. मतलब उसका फोन गिरा ना, मेरा क्या जाता है. राइट. So that is indifference. मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता. मतलब my feelings about it are either the same or zero. Either the same or zero. ठीक है. Indifference curve. ठीक है. मतलब हम जो हमारे preferences है, आपको डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व याद है 12th स्टैंडर्ड का? डिमांड स्केड्यूल में क्या होता था? हम लिखते थे 10 रुपए का 5, 8 रुपए का ये, 6 रुपए का इतना. यस. और फिर हम उसको प्लॉट करते थे. जैसे अभी हमने टी और एमयू के लिए किया था. टी और एमयू का टेबल दिया हुआ था, वी कॉल इट अ शेड्यूल, और फिर हमने उसका ग्राफ बनाया, दैट वी कॉल एज द कर्व. राइट बेटा? सो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस मतलब वी आर एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व. इज दिस क्लियर? यस. ओके.
इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको प्रॉपरली दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे पार्टी है, ओके, एंड माई डैड इज गोइंग टू ब्रिंग द फूड एंड बेवरेजेस, ओके। मैं पापा को बोलता हूं कि पापा गेट 10 लेस का पैकेट एंड 5 कुरकुरेस, और if you don't get Lays, get 5 Lays का पैकेट and 8 कुरकुरे का पैकेट. और I tell them, if you get only 2 Lays का पैकेट, क्योंकि आजकल Lays इतना नहीं मिल रहे, तो 2 Lays का पैकेट you take and क्या है and you take 10 कुरकुरे का पैकेट. आप इसमें से कुछ भी लेके आओ, मेरे को चलेगा. आप इसमें से कुछ भी लेके आओ, मेरे को चलेगा. ठीक है. इसका और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. तो आज सुबह मैं निकल रहा था तो मॉम वाज आस्किंग कि बेटा डिनर में तू क्या खाएगा. तो मैंने बोला मम्मा आज मेरे को ए खाने का मन है और बी खाने का मन है. आप ए या बी में से कुछ भी बना देना, आई एम ओके विद इट. ये क्या हुआ? इनडिफरेंस. ये क्या हुआ? इनडिफरेंस. मतलब आप मुझे ये कॉम्बिनेशन दो या ये कॉम्बिनेशन दो, दोनों में से मुझे सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है. ये आज सुबह का प्रैक्टिकल एग्जांपल. ये एग्जांपल पार्टी का हो गया. इसके पहले मैंने आपको स्टडी का दिया. ठीक है. सो इन शॉर्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलना क्या चाहता है? वो बोलना चाहता है कि यश, टेल मी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स in which whatever you will get the same level of utility. मतलब you are indifferent to which one you get. You are indifferent to which one you get. ठीक है. मतलब पापा अगर 2 लेस और 10 कुरकुरे का पैकेट लेके आ गए तो मैं बोलूंगा अरे यार पापा इतने कुरकुरे क्यों लेके आ गए. ऐसा नहीं होएगा. अगर पापा 10 लेस एंड 5 कुरकुरे लाते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. इन एनी ऑफ द केस मैं ये नहीं बोलूंगा अरे पापा ये क्यों लाए, ये नहीं चाहिए था. आई एम ओके विथ एनी 3 कॉम्बिनेशन कमिंग टू माई प्लेस फॉर द पार्टी. इज इट क्लियर? यस. इज इट क्लियर? ओके. सो देखो बेटा, दिस इज नॉट द कंप्लीट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इनडिफरेंस. कि इनडिफरेंस क्या है. एनालिसिस हम बाद में करेंगे. अभी के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द वर्ड इनडिफरेंस. सो डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इनडिफरेंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज? यस. ये तीनों में से आप कुछ भी लेके आओ पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज व्हाट इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मतलब माय यूटिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ दिस 3 कॉम्बिनेशंस इज द सेम. माय यूटिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ दिस 3 कॉम्बिनेशंस इज द सेम. Is it clear? Yes. So this is the indifference utility. मतलब any of this combination will give me the same utility. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. I am okay with any of this combination coming to my place for the party. Is it clear? Yes. So indifference curve analysis बेटा इस पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब indifference curve जो बनेगा, indifference curve जो बनेगा वो कैसे बनना है? अगर मैं सिंपली एक रफली अगर यहां पे बनाना चाहूं ना, तो देखो हाउ विल आई गो अबाउट इट. हियर आई विल प्लॉट लेस, हियर आई विल प्लॉट कुरकुरे. ठीक है. अब लेस कितना जा रहा है? मैक्सिमम 10 जा रहा है. तो आई विल पुट 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. और कुरकुरे मेरा कितना जा रहा है? 5 8 10. तो आई विल पुट 2 4 6 8 10. ओके. अब सिंपली मेरे को बताओ 10 लेस के साथ 5 कुरकुरे है. यस. सो 10 लेस एंड 5 कुरकुरे यहां पे आएगा. यस. देन 5 लेस एंड 8 कुरकुरे. सो 5 लेस एंड 8 कुरकुरे यहां पे आएगा अप्रोक्सीमेटली. यस और नो? यस. 2 लेस एंड 10 कुरकुरे. 2 लेस एंड 10 कुरकुरे यहां पे आएगा. यस और नो? सूर्या नालायक बोर्ड की तरफ देख. हाँ. कितना? 2 and 10 यहां पे आएगा. यस. अब मैंने ये सारे पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट कर दिया. ये बन गया मेरा इंडिफरेंस कर्व. सिंपल. सिंपल. यस. तो बेटा
ये बन गया मेरा इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस कर्व स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, यश को इतना लेस इतना कुरकुरे, इतना लेस इतना कुरकुरे, इतना लेस इतना कुरकुरे, कुछ भी लाके दो, यश इज इनडिफरेंट, यश को फर्क नहीं पड़ेगा, यश को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा। All these three combinations suppose are giving me 100 utils. Okay, मतलब ये तीनों combination में the total utility I will get is 100 utils. So 2 and 10 will give me 100 utils, 5 and 8 will give me 100 utils, 10 and 5 will give me 100 utils. This is basically what I am trying to say with indifference curve analysis. Is this clear to you? Yes. इसमें जरूरी क्या है, दो चीजें होनी चाहिए, two commodities. It cannot be one. ओके, इट कैन नॉट बी वन। अभी आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व में, बट अभी के लिए इतना समझा। यस, इनडिफरेंस मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस ऑफ यूटिलिटी मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस मुझे सेम यूटिलिटी देंगे, आई एम इनडिफरेंट टू देम, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे ए दो, बी दो या सी दो। गया कि गया? गया? ओके, ठीक है, चलो वापस आ जाओ। Indifference curve represents combinations of, jaldi bolo, of two commodities that give the, okay, that give the same level of satisfaction to the consumer. क्या हमें ये पता है अब? Yes, all combinations of Lay's and Kurkure will give me the same utility. Yes or a yes? Yes, okay. As all combinations give same level of satisfaction, the consumer becomes indifference, that is neutral as to which combination it is get. पापा आप इन तीनों में से कुछ भी लेके आओ, मेरे को चलेगा, I am neutral, I am indifferent. ठीक है, ये तीनों कॉम्बिनेशन मेरे को सेम ही यूटिलिटी देगा। Is it clear? Yes? Okay. In other words, all combination lying on the indifference curve are equally desired and equally preferred. Okay, let me ask you, is 10 and 5 equally desired as 5 and 8, and is 5 and 8 equally desired as 2 and 10? Yes, equally desired. तीनों में से कुछ भी चलेगा, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए मतलब तीनों में से कोई एक तो आना चाहिए, तीनों में से कोई एक तो आना चाहिए, बट ये तीनों में से कोई भी एक चलेगा। Yes बेटा, that is the language they are using over here when they say all combinations lying on the indifference curve are equally desirable and equally preferred. ठीक है, मतलब ये भी इतने ही इंटेंसिटी से चाहिए जितना बी चाहिए, जितना सी चाहिए। क्लियर हो रहा है? यस, इतने ही इंटेंसिटी से ए चाहिए, उतने ही बी चाहिए, उतना ही सी चाहिए, कोई भी एक दे दो चलेगा। ओके, नाउ कैन वी सी एन आईसी कर्व? आईसी कर्व यूजुअली बेटा ऐसा बनता है, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहां पे बन रहा है। यस और नो? यस, तो आईसी कर्व के जो भी पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आर दे इक्वली डिजायरेबल? यस। आर दे इक्वली प्रेफर्ड? यस। ओके, चलो, टू अंडरस्टैंड लेट्स गो थ्रू द फॉलोइंग इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, फूड है, क्लोथिंग है, अब इसके बाजू में MRS लिखा हुआ है। ये MRS जो है ना बेटा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच फूड को हम लेते हैं X, क्लोथिंग को लेते हैं Y। हाउ मच ऑफ फूड एम आई रेडी टू लेट गो टू गेट मोर ऑफ क्लोथिंग? How much food am I ready to let go to get more of clothing? That is by marginal rate of substitution. For example, यहां पे देखो बेटा, to get one more of food, मेरा food increase हो रहा है कि नहीं? Yes, to get one more of food, I am ready to give 4 of clothing. तो मेरा marginal rate of substitution क्या हो गया? 4. इसको हम बेटा एक्सप्रेस करते हैं 4:1, बट 4:1 है तो हमने उसको 4 लिखा हुआ है। ठीक है, then to get one more unit of food, how much am I ready to let go? 2 units of clothing. Then to get one more unit of food, I am ready to let go only 1 unit of clothing, only 1 unit of clothing. ठीक है,
अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? क्या डिक्रीजिंग बेटा, थोड़ा इलैबोरेट कर। हाँ, तो मतलब आई एम रेडी टू गिव लेस एंड लेस ऑफ क्लोथिंग टू गेट मोर एंड मोर ऑफ फूड। यस और नो? यस, ये बेटा हमारा बिहेवियर होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मेरे पास क्लोथ्स बहुत सारे पड़े हुए बट फूड बहुत कम है, तो हम लाइक अरे तू एक काम कर, तू मेरे 4 कपड़े लेके जा बट मेरे को खाना दे दे। बट बाय द थर्ड यूनिट ऑफ फूड आई एम लाइक यार मेरे पास फूड भी इनफ है और मेरे पास क्लोथ्स भी बहुत कम हो गए, मेरे पास अब सिर्फ 4 ही क्लोथ्स बचे। तो जो कमोडिटी डिक्रीज होती जा रही है बेटा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। पहले 10 थे तो छोड़ना यार, बट अब सिर्फ 4 ही बचे, 10 का और 4 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना। यस, और फूड के लिए क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। फूड पहले एक ही था, अब 3-3 है। तुम समझे? लाइक ठीक है यार, देख अभी मेरे को फूड मेरे पास इनफ है, क्लोथिंग मेरे पास कम है, तो मैं क्लोथिंग का सिर्फ एक ही यूनिट देगा टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ फूड। पहले क्या बोल रहे थे, 4 लेके जा यार बट मेरे को फूड दे दे। बट जैसे जैसे फूड बढ़ते गया और क्लोथिंग कम होते गया, क्लोथिंग का वैल्यू बढ़ गया और फूड का प्रेजेंस या यूटिलिटी जो फूड के एडिशन से मिल रहा था वो कम होते गया। दैट इज वाई द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? यस। ओके, सो जो मॉड्यूल का एग्जाम्पल है वही आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑब्वियसली बेटा जो एग्जाम्पल यहाँ पे उसमें डिफरेंट यूनिट्स है तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज द स्केड्यूल, इंडिफरेंट स्केड्यूल एंड द ग्राफ। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा ही कुछ आईसी कर्व हमने बनाया था? यस, ऐसे ही कुछ हमने बनाया था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपका जो एग्जाम्पल था उसमें लेस कम होते जा रहा था और कुरकुरे बढ़ते जा रहा था। यस, लेस कम होते जा रहा था और कुरकुरे बढ़ते जा रहा था। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बेटा, एक तो हम पैटर्न फॉलो कर ही रहे, ठीक है, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, एंड सैक्रिफाइस जो है वो कम कम होते जा रहे हैं। बट व्हाट मेजरली यू हैव टू रिमेंबर इज बेटा, मैंने आपको ये पार्टी का एग्जाम्पल जो है वो इनडिफरेंस समझाने के लिए दिया था, इनडिफरेंस कर्व का बिहेवियर नहीं। ओके तुम बोलोगे सर इसमें एमआरएस हम कैसे निकालेंगे ये वो, तो डोंट गेट देयर, वो कंफ्यूज मत होना बेटा। आई हैड गिवन यू दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनडिफरेंस, नॉट इनडिफरेंस कर्व का एनालिसिस। ओके, नाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक ऑफ एमआरएस। तो हमारे जो भी आईसी कर्व्स वगैरह बनेंगे हम एमआरएस को कैलकुलेट कर करके बनाएंगे। इज इट क्लियर? यस बेटा, तो बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार ये मेरे साथ हुआ था, मेरे को बच्चे ने बोला था कि सर आपके पार्टी के एग्जाम्पल में फिर हम कैसे करेंगे, तो तब मेरे को, इसलिए आई एम क्लैरिफाइंग दैट टू यू कि आई हैव गिवन यू द पार्टी एग्जाम्पल सो दैट आई कैन टेल यू हाउ आई एम इनडिफरेंट टू द कॉम्बिनेशंस। ओके, चलो नाउ यहां पे देखते हैं, तो वी कैन क्लियरली सी बेटा कि पहले जो मेरा फूड था फॉर 1 ही था और क्लोथिंग 12 था, तो टू जस्ट टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ फूड, टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ फूड मैंने 6 क्लोथिंग के यूनिट्स दे दिए। यस बेटा, बट 3 के लिए फिर मैंने सिर्फ 2 दिए और चौथे के लिए आई वॉज रेडी टू गिव ओनली 1, आई वॉज रेडी टू गिव ओनली 1। ओके, इज दिस क्लियर? यस, एमआरएस समझ में आया? एमआरएस समझ में आया? यस, ओके। अभी यहां पे देखो, द ऑर्डिनल एनालिसिस of demand by Hicks and Allen is based on indifference curve which represent that the consumer's preferences graphically. An indifference curve is a curve which represents all those combinations of 2 goods which give the same satisfaction to the consumer. Since all combinations on indifference curve give equal satisfaction to the consumer is completely indifferent among them. Yes, the consumer is completely indifferent among them. Okay. Now what I want you to do is, here can you see units of clothing, units of food? Yes बेटा, जब हमने किया था तो हमने भी ऐसा ही कुछ किया था,
यूनिट्स ऑफ लेज, यूनिट्स ऑफ कुरकुरे, यस और नो? यस। अब मैं चाहता हूं आप लोग ये वाला जो स्केड्यूल यहां पे दिया हुआ है इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। ओके इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। क्लोथिंग जो है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस, फूड जो है विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ओके आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। सिंपली कुछ भी टेंशन मत लो, इनडिफरेंस को कभी बनाया नहीं है ये सब मत सोचो। क्लोथिंग के यूनिट्स प्लॉट करो कॉरस्पॉन्डिंग टू फूड का यूनिट्स। फूड का 1 तो क्लोथिंग का इतना, फूड का 2 तो क्लोथिंग का कितना, बस उसको प्लॉट करो एंड ज्वाइन करो, आपका इनडिफरेंस का बन जाएगा। सो यूजुअली इसमें ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, जो बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना, वी टेक इट एज वाई, एंड जो एक एक यूनिट ही बढ़ रहा है या 1-2 यूनिट्स ही बढ़ रहा है उसको हम एक्स पे लेते हैं, बिकॉज वी वांट टू शो दैट फॉल। We don't want to show the fall like this, we want to show the fall like this. Okay? So, food x axis में आएगा, clothing y axis. ये मेरा crude logic है, ऐसा कोई rule of thumb नहीं है. But usually when I want to show something big difference, I'll take it on y axis. क्योंकि vertically ज़्यादा समझता है, as much as horizontally इतना visually नहीं बैठता है. Okay? And plus ICAI ने भी वैसे ही लिया है. Okay? ICAI ने भी क्लोथिंग को y एक्सिस पे लिया, तो वी विल फॉलो दैट। ये थोड़ा फ्री हैंड है तो कर्व एग्जैक्टली स्लोप वैसा दिखेगा नहीं, ठीक है? अच्छा बच्चा पार्टी 1 सेकेंड। You remember I told you कि MRS is actually change in y upon change in x, but 4:1 है तो हम 4 लिख रहे हैं। याद है मैंने बोला था 4:1 है इसलिए हम 4 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना बेटा इन योर बुक मार्क कर लो, नीचे दिया हुआ है, मैंने वो जस्ट चेक किया है, बट फिर भी आप लिख लो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है? अच्छा अब बेटा एक डायग्राम ना आप देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए, तो प्लीज गिव मी 1 मिनट बिफोर यू कंटिन्यू विथ योर डायग्राम एंड पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ओके you see beta y is falling by this much and x is increasing by this much, can you see that? तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन y, इसको हम लिखते हैं चेंज इन x। x का कितना चेंज है 1 यूनिट का, y का कितना चेंज है 4 यूनिट्स का, तो आप लिखोगे डेल्टा y MRS is equal to delta y upon delta x, changes of 4 for y, changes of 1 for this, and that is how it comes to 4। आपके डायग्राम में बेटा प्लीज ये दिखाना ताकि आपको ध्यान में रहे कि MRS कैसे मेजर हो रहा है, क्योंकि इसके बाद वापस एक डायग्राम बनाने का है तो सिर्फ इसके लिए ना बनाना पड़े, वी कैन मेक इट फ्रॉम हियर ओनली।
ओके चलो आगे बढ़े. यस. सो अगेन assumptions, मतलब इंडिफरेंस कर्व के लिए हमें क्या क्या अज्यूम करना पड़ता है. नॉन सेटाइटी. This assumption means that consumer has not reached the point of full satisfaction in the consumption of any quantity. Therefore, a larger quantity of both commodities are preferred. इसको ना बेटा हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस सिंपली अभी इंडिफरेंस मैप करेंगे ना तब आएगा कि हायर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड हमको चाहिए. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आगे आएगा तब बताता हूँ, बट अभी सिंपली आइडिया रखो कि what it means is that a consumer, a rational consumer will always want more, higher utility, higher things. Yes, तो उसको हम monotonic preferences कहते हैं. आगे आएगा तब अपन नोट कर लेंगे. ठीक है. Rationality, the consumer has to be rational. They want maximization of the total utility given the market prices and money income. मतलब उस income में, उस market price में जो भी highest possible utility है वो उसको चाहिए. Also assume to have relevant information about prices, markets, everything. Consistency. The consumer is consistent in his choices. That is, preferences of consumers are consistent. If he prefers combination A over B in one period of time, he will not prefer B over A in another period of time. ठीक है. मतलब जो combination है उसी को stick करेगा. In simple words, उसके taste and preferences change नहीं होंगे. जैसे DMU में था वैसा ही. Transitivity. Transitivity बहुत important है. इंडिफरेंस मैप में समझ में आता है. उसकी एक क्वालिटी होती है वाई इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है. अभी उसको समझो. अगर मैं बोलूं, ठीक है, लेट्स से इट इज मी, ओके, एंड आई से स्नेहा इज माय सिस्टर. ओके, स्नेहा इज माय सिस्टर एंड उर्वी इज स्नेहा सिस्टर. उर्वी इज स्नेहा सिस्टर. सो बाय दैट लॉजिक उर्वी शुड बी माय सिस्टर, नो? यस. बट मैं बोलूं यश एंड स्नेहा आर ब्रदर एंड सिस्टर, बट उर्वी एंड यश आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर. तो डज इट मेक सेंस? नहीं. तो ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है? इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए शुड बी इक्वल टू सी. ट्रांजिटिविटी है ना. यस. अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी बराबर है ना. यस. डू वी अग्री? है ना. If I say $1 is equal to 100 rupees and $1 is equal to 1 pound, तो 1 pound will be equal to 100 rupees, no? Yes or no? Yes, beta. Take one more example. I say $1 is equals to 100 rupees and $1 is also equal to 1 pound. ठीक है. मेरे को pound का साइन exactly याद नहीं है. ठीक है. तो in that case, beta, 1 pound should also be equal to 100 rupees, no? Yes. इसको हम ट्रांजिटिविटी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी. If 1 and 2 and 2 and 3, then 1 and 3 will be the same. Okay. If combination A is preferred to B and B is preferred to C, then A is preferred to C. मतलब if I prefer CA over CS and I prefer CS over CMA, तो automatically I am preferring CA over CMA, no? Yes or no? Yes. तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं होगी, प्रेफरेंसेस या रैंकिंग में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दिस इज नथिंग बट व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू कि जब मेरे पास 10 क्लोथ्स थे तो आई वाज रेडी टू गिव 4 क्लोथ्स फॉर जस्ट गेटिंग 1 मोर यूनिट ऑफ फूड. बट जैसे ही मेरे पास फूड बढ़ते गया और क्लॉथ कम होते गया, क्लॉथ का जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो गिर गया. मतलब आई वाज रेडी टू ट्रेड लेस एंड लेस ऑफ क्लॉथ फॉर फूड. Okay. It means as more and more of units A are substituted for B, consumer will sacrifice lesser and lesser units of B for each additional unit of A. ठीक है. So A के लिए हम लिखेंगे food, B को हम sacrifice कर रहे थे, इसको हम लिखेंगे cloth. Okay. Cloth, clothes जो भी लिखना है चलेगा. Is it clear, बच्चा पार्टी? Yes. Okay. हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया. एक्चुअली मैं 83, 85, 87 जो भी चलता रहता है वो, और पाउंड का तो आई थिंक 90, 92 रुपीज चल रहा है, जो भी है.
यहाँ पे एग्जाम्पल लिए. ओके, नाउ is basis of indifference curve in theory of consumer. It may be defined as the rate at which a consumer will exchange successive units of one good for another. ठीक है, मतलब रेट मतलब कितना, रेट मतलब कितना, मतलब कितना क्लॉथ आई विल गिव, कितना सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ क्लॉथ आई विल गिव टू गेट फूड, कितना सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ क्लॉथ आई विल गिव टू गेट फूड. क्लियर है? यस, ओके. यस, ये हमने देखा था. 4 of y is given for 1 of x, then 2 of y is given for 1 of x, then only 1 of y is given for 1 of x. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वहीं पे वो बना दो, क्योंकि अभी इसके लिए अपने को वापस पूरा इंडिफरेंस का प्लॉट करना पड़ता. ठीक है, तो हमने वो इंडिफरेंस का जो मेजरमेंट था, चेंज इन y, चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन x, वो हमने वहीं पे दिखा दिया. समझा बच्चा पार्टी? यस, ओके. The two reasons for this, the want for a particular group good is satiable. मतलब एक पॉइंट के बाद satiate हो जाते हैं कि हाँ भाई बस. So when a consumer has more of it, the intensity of want decreases. पहले एक ही फूड का यूनिट था तो फूड 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 चाहिए, अब फूड है तो अभी कुछ नहीं चाहिए. And I've seen this. अभी तुम लोग कितना करो, सीए फाउंडेशन क्रैक करने का, सीए फाउंडेशन में ये करने का. इंटर में जाओगे ना, फिर तुम ही फाउंडेशन के बच्चों की फिरकी लोगे. अरे क्या इतना टेंशन लेता है, तेरे को पता है इंटर में कितना आता है, राइट? Once you have had enough of it now, उसका वो जो want का intensity वो कम हो जाता है. What I mean by the example is that once right now the intensity or the thoughts you have about CA foundation you will not have it in CA inter. You get my point? जब आपके पास फूड नहीं था ना तो आपको बहुत फूड 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 था, अब फूड मिल गया तो लाइक नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए. ओके, मैं इतना ही देगा. ऑलराइट. Most goods are imperfect substitutes for one another. MRS would remain constant if the substitute for one another perfectly. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोक और पेप्सी लेता हूँ एंड कोक और पेप्सी मुझे इक्वली पसंद है, तो एक कोक के बदले एक पेप्सी आई गिव, दो कोक के बदले दो पेप्सी आई गिव, तीन कोक के बदले तीन पेप्सी आई गिव. राइट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, एक के बदले एक. तुम मेरे को ऐसा बोलोगे सर मैं आपको एक कोको कोला देता हूँ, आप मेरे को दो पेप्सी दो, मैं बोलेगा चल बक, बोलेगा कि नहीं? समझे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना. मेरे को कोक और पेप्सी इक्वली प्रेफर्ड है, तो तू एक दे एक ले, है ना? पक्का? ओके. सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू लोअर क्लोथिंग कंजम्पशन विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू हायर फूड कंजम्पशन. मतलब मैं क्लोथिंग का यूटिलिटी जितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं क्लोथिंग को देख के, उतना ही यूटिलिटी मैं फूड से गेन कर रहा रहूंगा, उतना ही यूटिलिटी में फूड से गेन कर रहा रहूंगा. ठीक है सर, बट स्टार्टिंग में तो हम 4 क्लोथिंग यूनिट्स दे रहे थे फूड के लिए और अब सिर्फ एक ही दे रहे, तो ऐसा कैसे चलेगा? हाउ इज इट इक्वल? बेटा एट दैट पॉइंट रिमेंबर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जब मेरे पास फूड का सिर्फ एक यूनिट है ना और क्लोथिंग के 10 है, तो क्लोथिंग का इतना वैल्यू नहीं है मेरे माइंड में जितना फूड का है. दैट्स व्हाई आई एम रेडी टू गिव मोर ऑफ क्लॉथ. बट जब मेरे पास फूड भी 3 हो गया है और क्लॉथ भी कम हो गया है, then the value of cloth has increased significantly in my mind and of food has significantly decreased in my mind. Value मतलब the utility I will get out of it. The utility I will get out of it has significantly decreased and increased. Okay, so keeping units of cloth with me will give me higher utility and trading for less of food will give me the same amount of utility. जब फूड नहीं था तो फूड की यूटिलिटी ज्यादा थी, क्लॉथ की कम थी. बट अब फूड भी इनफ है और क्लॉथ भी कम है, तो यूटिलिटी स्क्वीज हो जाती है. क्लियर? यस, ओके. सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू चेंज इन क्लोथिंग कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी इनटू द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी. सी मतलब क्लोथिंग, एंड फूड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड. सो फॉर एग्जांपल मेरी मार्जिनल यूटिलिटी से फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आपकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं उसको कार्डिनल वे में समझा रहा हूँ. सपोज करो मैंने जो मार्जिनल यूनिट ऑफ क्लॉथ है, हर एक यूनिट से मुझे 10 MU मिलता है. कांस्टेंट नहीं होता है MU, बट यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट. और मैंने सैक्रिफाइस कर दिए 4, मतलब मैंने 40 यूटिल्स दे दिए. यस, आई सैक्रिफाइस 40 यूटिल्स. सामने मेरे को फूड का 2 यूनिट मिल रहा होगा और उसका हर एक का मुझे 20 यूटिल्स मिल रहा होगा. तो आई गेव अवे 40 यूटिल्स टू गेन
40 यूटिल्स। ये ऑर्डिनल अप्रोच है, इट इज क्रिमिनल टू एक्सप्लेन इट इन कार्डिनल वे, बट क्योंकि आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए ना बेटा, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। क्योंकि काफी बच्चों का क्या होता है ना, उनको फॉर्मूला देख के ना सब चक्कर आने लगता है कि सर इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, सो आई डोंट वांट दैट। इसलिए फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के कुछ एग्जांपल्स कार्डिनल वे में दे देने का। ठीक है, अच्छा, डू यू अग्री? अब ये कॉन्सेप्ट समझा क्या बोल रहा है वो? यस तो अभी क्या बोल रहा है कि आपका अल्टीमेट फॉर्मूला जो है वो ये बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। हमारा MUC is 10, QC is 4, QC is 4, QF is 2, MUF is 20. So QF is 2 is equal to MUF. MUF is 20. MUC is 10. 2 ones are 2 twos are 10 ones are 10 twos are. 2 upon 1 is equal to 2 upon 1. Is it right? Yes. Is it right? Yes. I would strongly recommend कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ये सारे नंबर्स लिख लो। ओके, आपकी बुक में प्लीज ये सारे नंबर्स लिख लेना। Is it clear बेटा? Yes? Okay. लिख लो फटाफट, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन रखता हूँ। प्लीज बेटा कहीं पे बाहर ऐसा हेट क्राइम मत करना कि तुम ऑर्डिनल यूटिलिटी को कार्डिनल वे में समझा रहे हो। सिर्फ ये इक्वेशन है और आपको दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैंने नंबर्स दिया है। प्लीज कभी भी ऑर्डिनल यूटिलिटी को कार्डिनल में मत समझाना, गाली दे रहे हो तुम उसको। ठीक है, सॉरी बेटा। You won't be applying to it. So here there is this assumption कि भाई हमारा जो यूटिलिटी मिस आउट हो रहा होगा will be equal to the utility that we are getting from that combination. मतलब 4 clothes में जो मैं sacrifice कर रहा हूँ उतना मुझे 2 food के units में मिल रहा होगा। I am just trying to mathematically prove what is happening over here. I am not trying to calculate it. I am trying to show you in a numerical way कि how it will work. That's all. Okay. To generalize, the marginal rate of substitution for x of x for y is the slope of the indifference curve. Okay, मतलब marginal utility of x divided by marginal utility of y, that will be my slope. Slope मतलब हमारे कर्व का जो शेप आता है ना बेटा, उसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, और मेजर जो होता है वो ऐसे होता है, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये हमें हमारे कर्व का स्लोप बताएगा। तो वही वो नीचे बोल रहा है कि भाई आई विल टेक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, दैट विल गिव मी द स्लोप ऑफ माय इंडिफरेंस कर्व। अभी इसको समझने के लिए पेप्सी और कोक वाले एग्जांपल पे आ जाओ। ठीक है, नाउ व्हाट्स योर नेम बेटा? रूही। हाँ तो ऐसे बोलना जोर से, 3 बार पूछना पड़ा। ओके रूही, मैंने पेप्सी और कोक का जो एग्जांपल दिया था बेटा, उसमें मैंने क्या बोला था? मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को सेम मिलेगी। यस, सो माय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी 1 and 1, है ना? एक पेप्सी ले, एक कोक दे, बराबर। तो इन दिस केस बेटा, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट पकड़ लूं तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY मतलब पेप्सी एंड कोक विल बी सपोज 10 marginal utility that I get from Coke equal to the 10 marginal utility I get from Pepsi, and my answer will be 1. तो इसीलिए बेटा जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक मिनट, ये आ गया हमारा फॉर्मूला बेटा। यस, अभी यहां पे देखो, indifference curve for perfect substitutes. Perfect substitute मतलब कोक एंड पेप्सी। यस, इसका स्लोप देखो 1 बनाएगा। कैसे? What I am ready to give for Coke is what I am ready to get from Pepsi. ठीक है, हमने इंडिफरेंस का कैसा देखा था? ऐसे शेप में जाता है। बट जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है मतलब दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली बैठ जाएगा, मतलब स्लोप विल बी ऑफ 1। ठीक है, तो यहां पे देखो, when two goods are perfect substitute for each other, the consumer
is completely indifferent as to which he consumes and willing to exchange 1 unit of X for 1 unit of Y, 1 unit of Pepsi for 1 unit of Coke. His indifference curve for these two goods are therefore straight line, parallel lines with a constant slope along the curve, or the indifference curve has a constant MRS. मतलब constant marginal rate of substitution, that is 1:1, 1:1, 1:1, 1:1. Okay? गया 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 ओके ठीक है यस अभी इधर आए हैं तो दूसरा भी देख लो दीज आर एक्सेप्शंस मतलब ऐसे एमआरएस के कर्व यूजुअली नहीं बनते अरे इनडिफरेंस कर्व नहीं बनते हैं बट दीज आर दी एक्सेप्शंस अभी आप दूसरा वाला देखो कैन यू सी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला द बी फिगर यस बेटा कैन यू सी द फिगर बी इसमें देखो बेटा y2 और x2, y1 और x1 एक L शेप कर्व बन रहा है ठीक है अब इसमें इन्होंने एग्जांपल क्या दिया मैं आपको मॉड्यूल का एग्जांपल देता हूँ ठीक है लेट्स से स्नेहा इज गोइंग फॉर ये शू का शॉपिंग ठीक है विल शी बाय ओनली लेफ्ट शू और विल शी बाय राइट शू आल्सो बोथ मैं उसको ऑफर दूं स्नेहा जस्ट बाय पेइंग 100 रुपीज मोर आई विल गिव यू वन मोर लेफ्ट शू विल शी टेक बोलेगी राइट शू नहीं उसका 500 रुपए विल शी टेक द शू देन नो सो यहाँ पे उन्होंने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल दिया है राइट शू एंड लेफ्ट शू ठीक है वो बोलेगा भाई जितना मेरे को लेफ्ट शू चाहिए उतना ही मेरे को राइट शू चाहिए तो ऐसा नहीं बोल सकता कि लेफ्ट ज्यादा लेके जाओ आई विल ट्रेड 4 ऑफ माई लेफ्ट शूज जस्ट टू गेट 1 ऑफ राइट शू विल यू डू दैट नो इट विल नॉट मेक एनी सेंस दो अलग चप्पल पहन के घूमोगे भरोसा नहीं आजकल के फैशन ट्रेंड का बट नॉर्मली तो नहीं करोगे राइट सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ऐसा एल शेप बनता है मतलब जितना y2 उतना x2 जितना y1 उतना x1 देख रहे हो वो डॉटेड लाइंस जो है ना y2 x2 और y1 x1 की वो इंपॉर्टेंट है नॉट द होल कर्व ओके वो सिंपली क्या बोल रहे हैं एक पॉइंट के बाद मेरे को अगर एक जूता है तो एक जूता चाहिए ही ना 1 लेफ्ट तो 1 राइट 2 लेफ्ट तो 2 राइट्स कैन आई टेक 4 लेफ्ट एंड 1 राइट नो So this is the concept of perfectly complementary goods. मतलब two shoes are perfectly complementary. Complementary goods मतलब दो goods जिनको साथ में यूज करना पड़ता है. Perfect complementary मतलब ये दोनों को एक साथ यूज नहीं किया तो यूज कर ही नहीं पाओगे. एक पैर में चप्पल एक पैर में कुछ नहीं चलेगा. एक पैर में एक चप्पल दूसरे पैर में दूसरा चप्पल चलेगा नहीं. तो perfect complementary. Complementary goods में यूजुअली क्या बोलते हैं? पेन एंड निब, फिर पेट्रोल एंड कार, ऐसा सब बोलते हैं. हमने डिमांड किया हुआ है. बट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कुछ नहीं चेंज होएगा यही होएगा यही चाहिए इसी रेशियो में चाहिए इज इट क्लियर पक्का वाला पक्का ओके चलो वापस आते हैं अभी इनडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है उसको देखो अच्छा वेदांत टेल मी वन थिंग बेटा कैन यू सी 3 कर्व्स IC1 IC2 IC3 यस बेटू ओके लेट अस थिंक कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड 10 मैं ऐसे लेता हूँ ठीक है वेदांत इफ आई यूज IC1 आई विल टेक 6 ऑफ Y एंड 2 ऑफ X डू यू अग्री मुंह से हाथ हटा बेटा जोर से बोल यस ओके बट if I go to IC2 for 6 of Y I am getting how many of X 4 okay if I go to IC3 for 6 of Y how many am I getting X का 6 so monotonic preferences मतलब higher utility या bigger combination of goods is always preferred by the consumer. Given a choice to you Vedant, which curve would you want to be on? IC1, 2 or 3? 3 है ना monotonic preference. अगर मेरे को 6 and 6 मिल रहा है तो मैं 6 and 2 का को उठाएगा 6 and 4 का उठाएगा What do I want? 6 and 6 I want 6 and 6 so इसको monotonic preferences कहते हैं बट ये और एक चीज दर्शाता है कि जैसे जैसे हमारा आईसी कर्व ओरिजिन से दूर जाता है इट विल हैव बिगर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड इट विल प्रोवाइड हायर यूटिलिटी एक बात मुझे बताओ क्या 6 और 6 ऑफ X एंड Y
will give you the same utility as 6 and 2 of x and y? No. No. Obviously 6 and 6 पे ज्यादा utility मिलेगा कि नहीं? Yes or no? Yes. 6 and 6 में मेरे को ज्यादा utility 100% मिलेगा. बच्चा लोग? Yes. तो if I be on IC3, will I have higher utility or lower utility than IC1? Higher utility. Obvious है ना? Higher utility मिलेगा. Yes. तो वो क्या कहता है कि ओरिजिन से जैसे जैसे कर्व दूर होते जाता है उसके उसमें मिलने वाली यूटिलिटी और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बढ़ते जाते हैं. उसके कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बढ़ते जाते हैं. डिड वी सी अ लाइव एग्जांपल ऑफ द सेम? यस. अच्छा, आपको एक वर्टिकल एग्जांपल भी देता हूं. इफ यू सी बेटा, ओवर हियर आई कैन हैव 6 and 2, ओके, बट ओवर हियर आई कैन हैव 10 and 2. Yes or no? I can have 10 and 2. So IC कर्व 2 पे जाता हूं तो भी भले मेरा x सेम रहता है 2, बट मेरा y जो है वो 6 से सीधा 10 हो जाता है. Now tell me something. 6 of y, 2 of x. 10 of y, 2 of x. Will it give me the same utility? No. Higher utility मिलेगा ना. So what does it mean? कि IC2 जो है is going to give me higher utility. Is going to give me higher utility. Do we all agree? Yes. This is what an indifference map is. Okay. Now, इसके जो properties है, that is going to be the last thing for today. ठीक है. मेरे को दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे वो कि सर 1:30 बज चुका है. ठीक है. But बेटा, I can't leave this halfway. Okay. I have to do this today. So I'll take 10 more minutes of your time and this will be done. Okay. It's important that you get it all together. All right. चलो, अभी इसका जो properties है ना, वो अपन यहां से करते हैं. Indifference curve slope downward to the right. Indifference curve slope downward to the right. Okay. Can you tell me why? Why is it going downwards? वो तो पता ही है क्यों जा रहे हैं. बच्चों. Very true. But why does one have to decrease and for other to increase? बच्चा लोग, मैं क्या बोल रहा हूं? Indifference curve क्या है? All the combination of goods that give me the same utility. Okay? Let's take an example. स्नेहा, जो आपने बोला. Let's say my first combination is 6 of kurkure and 4 of Lays. ठीक है? अब either Lays has to decrease or kurkure has to decrease, another one will increase. For example, 6 Lays, 4 kurkure tha. If I make it 8 Lays and I make it 6 kurkure, will I get the same utility or more? More. तो जितना यूटिलिटी लेस के बढ़ने पे बढ़ गया उतना यूटिलिटी लेस के कुरकुरे के घटने पे घटना चाहिए. Then only the overall utility will remain the same. So that is why बेटा it will slope downwards to the right. क्यों? अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो सामने उतनी यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाली दूसरी कमोडिटी डिक्रीज होनी चाहिए, वरना आप बोल नहीं सकते कि पूरे आईसी कर्व पे सेम यूटिलिटी मिल रहा है. सो इफ वन इज इंक्रीजिंग द अदर हैज टू डिक्रीज, ताकि इससे जो इंक्रीज्ड यूटिलिटी मिल रही है वो सामने वाले की डिक्रीज्ड यूटिलिटी से कॉम्पनसेट हो जाए. डू वी ऑल एग्री? यस. समझा ये पॉइंट? ओके बेटा. So what I mean by this is that if one commodity is increasing, the other has to decrease. That's why it goes from left to right, showing a negative relation. Negative relation मतलब if y is increasing, x will decrease. Okay? इसको हम negative relation बोलते हैं. ये हमने demand curve में किया है. Yes? यश नालायक 10 मिनट के लिए तू ऊपर नीचे हुआ है ना तो बहुत मार खाएगा. ध्यान दे चुपचाप बुक में और बोर्ड पे. सूर्य को देखेगा, वेदांत को देखेगा, यहाँ वहां देखेगा. स्प्रिंग लगाए तेरे में 130 को ऐसे तेरे को उछालने लगता है. नालायक, चुपचाप यहाँ पे ध्यान दे, वरना तेरे को और 1 घंटा बिठा के पूरा रिवीजन तेरे से लेके फिर भेजूंगा घर पे. ठीक है? अभी प्रोफेशनल्स बन रहे, अभी मिनट पे हिसाब से काम नहीं करने का. आर वी क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट बेटा? यस. ओके. इनडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है? कॉन्वेक्स मतलब क्या बेटा? ऐसे. कॉन्केव मतलब क्या? ऐसे. ठीक है? कॉन्केव जो होता है ना बेटा, इफ आई टेक अ कॉन्केव कर्व, इट शोज एन इंक्रीजिंग रिलेशन.
इट शोज एन इंक्रीजिंग रिलेशन. क्या हम इंक्रीजिंग रिलेशन दिखा सकते हैं? मतलब y भी बड़ा x भी बड़ा? नहीं. So that's why we cannot have a concave curve. That's why we cannot have a concave curve. Are we clear? Yes. Vedant, just ask if they have a lecture immediately and they're waiting on us. Just ask them. तू प्रार्थना कर रहा होगा ना, वो लोग हाँ बोले. Okay. चलो. दो बजे ना? हाँ ठीक है, तो रुक. ओहो. ओके, नाउ बेटा ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया है कि हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो अ हायर सेटिस्फैक्शन. IC1 एंड IC3 हमने किया है बेटा यहाँ पे. यस, डिड वी ऑलरेडी प्रूव दिस पॉइंट? यस. तो x और y इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? इफ वन इज इंक्रीजिंग द अदर डिक्रीज हैज टू कॉम्पनसेट इट. Then it is convex to the origin because concave will show an increasing relation. Convex shows the decreasing relation. मतलब negative relation. Higher indifference curve shows higher level of satisfaction. Yes, origin से जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा वो satisfaction बढ़ाएगा. ठीक है? Indifference curve cannot intersect each other. Please यहाँ पे लिख दो transitivity. ओके, ट्रांजिटिविटी देखो. सपोज करो बच्चा, मैं ऐसे, यहां पे ना कम जगह है, मैं यहां पे बनाता हूं. मैंने अभी तक क्या रोया, मैं क्या रो रो के बोल रहा था कि बेटा एक कर्व पे पूरा सेटिस्फैक्शन सेम होता है. मतलब मैं कहना चाहता हूं कि दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन विल गिव मी द सेम यूटिलिटी. इज इट पॉसिबल? नो. और पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी मिलता है. यस, मतलब दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट विल हैव द सेम यूटिलिटी. Can this utility be the same as this point, and this point? No. That's why they can never intersect. दो IC curves same level of utility or satisfaction नहीं दिखा सकते. अगर same level of satisfaction नहीं दिखा सकते तो how can they intersect? Intersection मतलब क्या? दोनों same है. Can they be same? No. So they don't intersect. Clear? Yes. तो transitivity से हमने ये समझा था. Is it clear बेटा? पक्का? यस. ओके, लास्ट थिंग, आप लोग को ये टेंशन आएगा कि ये डायग्राम्स वगैरह क्या कहाँ पे है, तो मॉड्यूल्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है? दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, थियरी ऑफ ट्रांजिटिविटी, हायर इंडिफरेंस कर्व. हाँ, ये वाला पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच आइदर एक्सिस. ठीक है? द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे. ठीक है? इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच द एक्सिस because the consumer will demand at least 1 unit of both commodities. इसका inherent rule क्या है कि मेरे को x भले तुम 1 दे दो और y मेरे को 10 दे दो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि x मेरे को 0 चाहिए और y मेरे को 12 चाहिए. ऐसा कभी नहीं होएगा. I will always demand 1 of both the commodities at least. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब मैं ग्राफ बनाता हूं, if a point is here मतलब उसका y 0 है, and if a point is here उसका x 0 है. बट क्या मैं किसी भी कमोडिटी का 0 मांग रहा हूं? नहीं. तो
एटलीस्ट इसका 1 होएगा तो यहाँ पे होएगा, इसका 1 होएगा तो यहाँ पे होएगा. Point is, they will never touch the axis. They will always be a little far away from the axis. Okay? Because दोनों combination में कोई भी good 0 नहीं हो सकता. Is it clear? पक्का? Okay? Then, समझा बेटू? Okay. Now, tomorrow we have a lecture again. Yes? तो कल के लेक्चर के पहले यहाँ तक का बजट लाइन तक का आपको सब कुछ आना चाहिए. First 5 to 10 minutes of the class, I'll be asking you questions. Okay? So make sure theory of consumer behavior का पूरा chapter up to this point आपने पढ़ा हुआ हो. Clear? Yes? चलो जाओ, आजाद हो तुम.